Hello everyone, welcome to another class. Dear students, आज मैं सिर्फ क्लास ही नहीं ले रहा हूँ। आज की क्लास में मैं आपके साथ यूनिट 1 एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी जिसका टाइटल है, इसके सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ ले रहा हूँ। We are actually revising all the questions of Unit 1, all the questions, all the means ये नहीं कि कुछ questions, सारे questions along with answers. And the best part about Mavericks India solution and me myself is that we take each and every question in detail ताकि आपको ये लगे that whenever you are attending our classes, you are always learning something new. और हम we are not leaving any stone unturned. We are covering up each and every point for you all so that you can score very good marks in the paper and you can become a great entrepreneur in your life. So पहला यूनिट है जो क्लास 12 का, वो है entrepreneurial opportunity, और इसमें इस हिसाब से सारे क्वेश्चंस गिवन हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और इसमें वर्ड लिमिट्स भी है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और 15 वर्ड्स ओनली। शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हैं और 50 वर्ड्स ओनली, नॉट एक्सीडिंग 50 वर्ड्स। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं ऑफ 75 वर्ड्स ओनली। फिर है लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस। Answer of these questions should not exceed 150 words. Then very long answer questions, and answers to these questions should not exceed more than 250 words. Then HOTS are there, high order thinking skills questions, and application based questions. So 7 form of questions are there: very short, short, long, very long, high order thinking skills question, and application based question. So बच्चों, मैं एक एक क्वेश्चन लूंगा आपके साथ along with answer. आपको और जगह पर भी क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे, but what we have done, we have scrutinized the chapter in detail so that we can provide you you know a clear answer to the question, a clear answer to the question. Let's take up the first point. Very short answer questions. Answer of these questions should not exceed 15 words. These are the questions. What is a business opportunity? What factors are involved in the process of sensing an entrepreneurial opportunity? Define the term environment scanning. List the environmental factors affecting external environment. What is the meaning of trend spotting? What is required to convert an idea into opportunity? And seventh question is, what is idea generation? So let's take up the answers to these questions. What is a business opportunity? बच्चों ये बहुत कॉमन एंड एवरी टाइम आस्क क्वेश्चन है, और इसका आंसर कुछ इस प्रकार से बनेगा. A business opportunity refers to a favorable and timely circumstance or situation that offers the potential for entrepreneurs to create and operate a profitable business. So बच्चों, जब भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं, we always talk about favorable and timely circumstance. ऐसे circumstances जो favorable होंगे और जो टाइमली होंगे, उस टाइम पर वही सर्कमस्टांसेस फेवरेबल होंगे, वही सर्कमस्टांसेस यूजफुल होंगे. That offers the possibility for entrepreneurs to create and operate a profitable business. It typically involves identifying a gap or unmet need in the market and developing a product, service, or solutions to address that need
thereby generating revenue or profit। आप जानते हैं कि जब भी एंटरप्रेन्योर्स की बात की जाती है तो वो हमेशा से they are working on identifying a gap or an unmet need in the market to develop a product। उसके बेसिस पर ही वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं, और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बेसिस पर ही they generate solutions and thereby they generate profits, they generate repeat sales, and they generate repeat business। So what is a business opportunity? Business opportunity refers to a favorable and timely circumstances with the potential for entrepreneurs to create a profitable business। Second question, what factors are involved in the process of sensing an entrepreneurial opportunity? बहुत बच्चों, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे, sensing an entrepreneurial opportunity involves factors like market research, identifying consumer needs, recognizing trends, assessing competition, understanding technology advancements, and having a keen eye for identifying problems that can be solved profitably। अब बच्चों, जब भी आप ऐसे फैक्टर्स की बात करेंगे जिसके बेसिस पर आप एक एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी को असेस कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने मार्केट रिसर्च पर ध्यान देना है, आपने कंज्यूमर की नीड्स पर ध्यान देना है, आपने ट्रेंड्स पर, जो उस टाइम का दौर है, जो उस टाइम की रिक्वायरमेंट्स है, उन पर ध्यान देना है, कंपटीशन पर ध्यान देना है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स पर ध्यान देना है। एंड this will help you to identify the problem in a very keen way, in a very sincere way, and then you can solve them and then you can generate profits। और याद रखिएगा, पहले प्रॉब्लम का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देन कम्स रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। क्योंकि प्रॉफिट्स तभी आएंगे जब प्रॉब्लम्स प्रॉपरली एड्रेस होंगी, उन पर सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए जाएंगे, और वो भी ट्रेंड्स के हिसाब से, मार्केट स्कैनिंग के हिसाब से उन सॉल्यूशंस को जनरेट किया जाएगा। एंड देन when people get benefited from your product, services and solutions, you will get profits in return। So what factors are involved in the process of sensing an entrepreneurial opportunity? These are the factors, जिसमें है market research, identifying consumer needs, recognizing trends, assessing competition, understanding technology advancements, and having keen eye for identifying problems and solving them properly। Okay, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। डिफाइन द टर्म एनवायरमेंट स्कैनिंग। अब एनवायरमेंट स्कैनिंग क्या है? जिन लोगों ने मेरी सारी क्लासेस अटेंड करी हैं उनको फॉर श्योर सब पता होगा, पर जो बच्चों ने क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए हैं अंडर एनी सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, फॉर देम आई हैव ब्रॉट इन अ श्योर शॉर्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टर्म एनवायरमेंट स्कैनिंग। एनवायरमेंट स्कैनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिकली, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ड को याद रखिएगा, एग्जाम में लिखेंगे तो यू विल श्योरली गेट वेरी गुड मार्क्स। सिस्टमैटिकली एनालाइजिंग, एनालिसिस करना एक प्रोसेस के तहत। ये नहीं कि आपने हैफ हेजर्डली जाकर बस मार्केट में आप खड़े हो गए एंड यू स्टार्टेड असेसिंग इट। You have to prepare a format, you have to collect the information, primary research, secondary research, and then you need to wait for that research and its outcome to come in front of you so that you can take proper decisions। Okay, systematically analyzing and monitoring the external factors that can impact a business or industry। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों,
एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपके बिजनेस को, इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको पता हो. व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड. If you know what is happening outside, you can always customize what is happening inside. You know, so that's very, very important. It involves gathering information about economic, social, political, technological, and environmental factors to understand the external business environment. Pestle के बारे में आप जानते हैं, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आप एक्सटर्नल एनवायरमेंट के थ्रू कलेक्ट करते हैं. और बच्चों, जब हम मार्केट को स्कैन कर रहे होते हैं, उस टाइम पर आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि whatsoever you are manufacturing or generating as a service, it should sync with the factors which are existing externally. क्योंकि जो रिक्वायरमेंट बाहर है, उसके बेसिस पर आप कंपनी तैयार कर रहे हैं, उसके बेसिस पर आप अपना बिजनेस तैयार कर रहे हैं, उसके बेसिस पर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सर्विसेज बन रही हैं, and then you are solving and resolving people's problem, on the basis of which you are getting you know uh, uh, results, or generating results for the people, and then profits. So profits cannot be generated instantly. They can be generated step by step, but for that, environment scanning is very important. And it is studying more about what's happening outside the organization, so that you can work on what is happening within the organization. So what is the business opportunity? What factors are involved in the process of sensing an entrepreneurial opportunity? And define the term environment scanning. Let's move on to the next questions. Question number 4, list the environmental factors affecting the external environment. ऐसे कौन से factors हैं जो आपकी external environment को affect कर रहे हैं? तो कुछ factors हैं बच्चों, वो इस प्रकार है. Environmental factors affecting the external business environment can include economic conditions, social and cultural trends, political and legal regulations, technological advancements, competitive landscape, environment and sustainability issues. तो बच्चों, जब भी हम बात करते हैं ऐसे फैक्टर्स को जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि कितना महंगाई चल रही है, पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम क्या है, उस हिसाब से प्रोडक्ट्स की, कमोडिटीज की वैल्यू क्या है. क्या ये तो नहीं है कि लोगों की इनकम कम है और चीजों की कीमत ज्यादा है. जब महंगाई बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकली परचेजिंग पावर लोगों की कम हो. सोशल एंड कल्चरल ट्रेंड्स, इस टाइम सोसाइटी किन ट्रेंड्स को फॉलो कर रही है, कल्चरली व्हाट इज एप्लीकेबल, व्हाट इज फीजिबल. कई जगह पर बच्चों सोशली बहुत ज्यादा एडवांस्ड people are living. At certain places you will find people are living in little bit restrictions, socially as well as culturally. इन चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर. नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एंड लीगल रेगुलेशंस. कई जगह पर पॉलिटिकल और लीगल रेगुलेशंस बहुत टफ नहीं है. if you have to do business, government is providing you too much support, paperwork is less. अगर पेपर वर्क कम होगा और टैक्सेस कम होंगे, तो ऑब्वियसली बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स विल टेक मोर इंटरेस्ट इन जनरेटिंग बिजनेसेस. बट अगर यही वैसा वर्सा होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत टफ होंगे, पेपर वर्क बहुत ज्यादा होगा, तो people even then they'll do business, but in lesser quantity. Are we getting it? Then we talk about टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. अब देखिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो सकता है ग्लोबली बहुत ज्यादा हो रही है, बट द कंट्री यू आर लिविंग इन एंड द प्लेस वेयर यू आर लिविंग इन, वहां पर उतनी ज्यादा ना हो. तो आपको उसी हिसाब से बिजनेस करना पड़ेगा जो कि सोशली लोगों की रिक्वायरमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी.
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंट्री में एज ऑफ नाउ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बहुत कॉमनली यूज नहीं हो रहे और प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो वहां पर इफ यू आर एडवर्टाइजिंग मोर अबाउट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड आस्किंग पीपल टू परचेज देम, इट इज ऑफ नो यूज। हाँ, पर अगर आपकी कंट्री के अंदर ऐसी कंपनीज हैं जो ईवीज प्रोड्यूस कर रही हैं एंड प्रमोटिंग इट्स सेल एंड इट्स यूसेज, then obviously it is recommended that you should go with them with its publicity and marketing. Competitive landscape, obviously if the rules are stringent, political instability is there, तो competitive landscape भी इतना stern नहीं होगा. But yes, if politically the government is stable, legal regulations are mild, तो बहुत सारे लोग बिजनेस करेंगे, तो उस टाइम पर कॉम्पिटिशन ही बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्न होगा. एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी इश्यूज, और जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एनवायरमेंट आपकी कंट्री का बहुत फेवरेबल है टू बिजनेस. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट आवर कंट्री, वी आर हैविंग वेरियस सीजन्स, और बहुत ज्यादा सीवियर सीजन्स भी नहीं है कि भाई 6 महीने 4 महीने बर्फ ही पड़ती रहती है. Are you getting it? तो उस कंडीशन में भी when environment is favorable for you to do business, obviously with the right strategies, right plannings, growth can be carried out in business. So जब भी हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको इफेक्ट करते हैं, जिसमें से इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, सोशल एंड कल्चरल ट्रेंड्स हैं, पॉलिटिकल एंड लीगल रेगुलेशंस हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप्स हैं, एंड एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी इश्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेंड स्पॉटिंग? अब बच्चों, हिंदी में ट्रेंड को कहा जाता है दौर. ट्रेंड स्पॉटिंग का क्या मतलब होता है? तो ट्रेंड स्पॉटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग इमर्जिंग पैटर्न्स और चेंजेस इन कंज्यूमर बिहेवियर, टेक्नोलॉजी और द मार्केट. अब बच्चों, जो जिस प्रकार से ग्लोबली चेंजेस आ रहे हैं, उसी प्रकार से चेंजेस आप अपने आसपास भी फील करेंगे. ट्रेंड स्पॉटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग इमर्जिंग पैटर्न्स, ऐसे पैटर्न्स जो इमर्ज हो रहे हैं, और चेंजेस इन कंज्यूमर बिहेवियर, टेक्नोलॉजी और द मार्केट. कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है. पहले हुआ करता था कि लोग, मतलब जहां तक मुझे अपने चाइल्डहुड का याद है, कि लोग इक्का दुक्का लोग टू व्हीलर्स खरीदा करते थे. और आज मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि तकरीबन हर घर में 2 से 3 गाड़ियां हैं. आप टू व्हीलर्स की तो बात छोड़ दीजिए. तो कंज्यूमर बिहेवियर कैसा हो गया कि इवन इफ दे डू नॉट नीड इट, बट दे नीड टू हैव 2-3 व्हीकल्स एट देयर प्लेस. ओके. Technology is advancing day by day. It's growing day by day. It has become limitless. उससे क्या होगा? Ease of life बढ़ जाएगी. और जो पहले जो गाड़ी 100 रुपए के पेट्रोल के अंदर 20 से 22 किलोमीटर चलती थी, अब वही गाड़ी एक बार आप चार्ज करेंगे तो उससे 1/4 प्राइस में उससे भी ज्यादा चलेगी. तो अब क्या हो गया है? टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से कंज्यूमर बिहेवियर्स आर चेंजिंग. They are going for more facilities, more durability, more comfortability, and they are purchasing different products. And obviously the markets are also changing. Entrepreneurs use trend spotting, वो दौर के हिसाब से काम करते हैं कि भाई इस दौर में क्या चल रहा है. To anticipate shifts in the market and leverage them to create innovative products and services. तो entrepreneur भी यही देखते हैं कि इस टाइम दौर क्या चल रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, टेक्नोलॉजी वाइज मार्केट कैसा चल रहा है, और उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज को बनाते हैं. And then people start using those products and services, and that's how the markets got established, and that's how trends got generated. So what is the meaning of trend spotting? It is the meaning of identifying emerging patterns or changes in consumer behavior, technology or the market. Let's move on to the 6th question. तो यहाँ पर हमारे 7 questions हैं, very short answer type questions. What is required to convert an idea into an opportunity? बहुत बहुत important question. Last question को ये mark कर दो.
ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन आइडिया इनटू एन अपॉर्चुनिटी। अब जो आप देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। आइडियाज तो बथेरे हैं, सबके पास है आइडियाज, बट in reality the great ideas are those which are getting converted into feasibility, possibility and usability, से हम opportunity कहते हैं। Everybody thinks about producing one thing or another, but producing it, selling it and reaping profits is a different thing altogether। तो आंसर देखते हैं। To convert an idea into an opportunity, entrepreneurs need to assess the idea's feasibility, तो कितना पॉसिबल हो सकता है वो आइडिया। आज पहले हम स्क्रीन्स के ऊपर माउस यूज किया था, वी आर यूजिंग माउस ऑन स्क्रीन, बट नाउअडेज पेन टैब्स आर। तो फिजिबिलिटी ना, पॉसिबिलिटी की भी अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊं तो यूज हो जाएगा मार्केट, लोगों की जिंदगी आसान कर देगा वो प्रोडक्ट। मार्केट डिमांड क्या है? इज द मार्केट डिमांड इज फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी, भाई पॉसिबल प्रॉफिट्स तो आपको मिलने चाहिए जितने आपने सोचे। एंड स्केलेबिलिटी, भाई आपने आज 6 महीने में आपने फॉर एग्जांपल 200 प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो अगले 6 महीने में आप एटलीस्ट 350 प्रोडक्ट्स तो बनाए, तो आपका जो बिजनेस है वो ग्रो तो करे, अरे स्केल तो करे, आगे तो बढ़े। दे शुड ऑल्सो हैव अ क्लियर बिजनेस प्लान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसोर्सेज एंड अ स्ट्रेटजी फॉर एग्जीक्यूशन, बिजनेस प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट टू अ क्लियर बिजनेस प्लान, क्लियर बिजनेस। आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास बिजनेस करने की नॉलेज होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। आप बिजनेस ऐसे नहीं कर सकते कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 2 घंटा बिजनेस किया और उसके बाद आप सारा दिन सो गए। नो नो, ये भी एक ना मेंटल रिसोर्स भी रिसोर्स है बिजनेस के लिए। जब आप मेहनत करना चाहते हैं, नहीं नहीं यार मुझे सारा दिन काम करना है, अगर कोई मेरे साथ वाला व्यक्ति 8 बजे 9 बजे दुकान बंद करे तो मुझे 11-12 बजे करनी है, ताकि मैं उस लास्ट कस्टमर को भी ना छोड़ूं जो कभी कभी मार्केट में आ जाता है। अगर हम सत्यव्रता दे की केस स्टडी के बारे में पढ़े तो वो अपनी शॉप को कोलकाता में ज्यादा टाइम तक खोलते थे, ताकि कोई वो लास्ट भूला भटका कस्टमर भी अगर मार्केट का हमारे पास आया है मार्केट में और सारी दुकानें बंद है, तो एटलीस्ट मेरे पास आ सके। जब हम इस लगन से काम करते हैं ना, इसको भी रिसोर्स कहा जाता है। उसके बाद आपके पास मैन पावर है, उसके बाद आपके पास एरिया है फ्रॉम वेयर यू आर ऑपरेटिंग योर बिजनेस, वो भी रिसोर्स है। एंड अ स्ट्रैटेजी फॉर एग्जीक्यूशन, अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाइए, उन्हें एग्जीक्यूटेबल मोड में लाइए, और अगर फेल होते तो दोबारा बनाइए। दैट इज व्हाट इज नीडेड टू कन्वर्ट एन आइडिया इनटू एन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अब है 7वां क्वेश्चन, व्हाट इज आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन क्या भला, क्या चीज है? आइडियाज कैसे जनरेट किए जाते हैं और क्यों रिक्वायर्ड है? आइडिया जनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कल ही एक बच्चे को पढ़ा रहा था, और एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर उस बच्चे को बहुत फोकस करने को कहा। द प्रोसेस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, creating and developing new concepts, solutions, or concepts that can potentially be turned into viable business opportunities। तो बच्चों आइडिया जनरेशन एक प्रोसेस है जहां पर ब्रेन को ना स्टॉर्म कराया जाता है, दिमाग में ना तूफान उठाया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल ब्रेनस्टॉर्म कैसे किया जाता है? एक आपने बिजनेस स्टार्ट करना, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के 20 अलग अलग तरीके आपने फाइंड आउट करने हैं और बेस्ट तरीका ऑप्ट करना है। ब्रेनस्टॉर्म करना है, बेस्ट तरीका ऑप्ट करना। तो आप क्या करेंगे? आप एक पर्ची के ऊपर या एक पेज के ऊपर उस बिजनेस का क्वेश्चन लिख के ना आप 25 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और आप उन्हें कहेंगे
कि भैया मुझे इस बिजनेस को स्टार्ट करने का अपना तरीका बता, तो व्यक्ति कहे ठीक है मैं बताता हूं आपको। और वो कैसे बताएगा? वो आपको इस प्रकार से बताएगा, वो अपने हिसाब से एक तरीका क्रिएट कर देगा। जब आप उन 25 लोगों से उन पेजेस को इकट्ठा कर लेंगे तो अब आपके पास 25 डिफरेंट तरीके होंगे एक बिजनेस को स्टार्ट करने के, अलग अलग तरीके। दैट इज व्हाट ब्रेनस्टॉर्मिंग इज, गेटिंग more ideas to start a venture and a feasible one at that. फिर हम नए कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, नए सॉल्यूशंस बताते हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्यूशंस को आप वायबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं। It is the initial step in the entrepreneurial process where entrepreneurs produce innovative ideas and solve problems or meet unmet needs in the market. तो बच्चों इस प्रोसेस के थ्रू आप आइडिया जनरेशन करते हैं, और वो आइडिया जनरेशन लीड करते हैं एक बिजनेस क्रिएशन में। और बिजनेस का मतलब ये कि जो लोगों के पास एग्जिस्टिंग समस्याएं हैं, आप उनको रिजॉल्व करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार, एनी फॉर्म ऑफ एंड बिलीव मी ऑन दिस, everybody in the world is selling, everybody in the world is doing business। चाहे वो जॉब भी व्यक्ति कर रहा है ना, तब भी वो बिजनेस ही कर रहा है। आप जॉब में क्या करते हैं? जो भी प्रॉब्लम जॉब में आती हैं, यू आर देयर टू रिजॉल्व दोस प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग इट? So what is idea generation? Idea generation is the process of brainstorming, creating and developing new concepts, solutions, or the concepts that can potentially be turned into viable business opportunity. ये आंसर्स आप लिखेंगे, you will surely get very good answers. अब बच्चों ये जो क्वेश्चन थे आपको सिर्फ 15 वर्ड्स के लिए थे। देखिए 15 वर्ड्स, थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन इसलिए किया है that if you miss out any words in the paper, even then you can at least write some few good words for these questions. So question number 1 to 7 we have covered. Now let's move on to short answers to these questions should not exceed more than 50 words. Obviously इसके जो आंसर्स हैं वो थोड़े से डिटेल में होंगे, थोड़े से डिटेल में, ज्यादा। तो क्वेश्चंस हम ले लेते हैं बच्चों, 4 क्वेश्चन है। These are the questions from your book. What is the purpose to scan the environment? Very important question. What are the factors involved in sensing opportunity? Again an important question. Draw an enterprise process diagram. आप और कुछ करें ना करें, आप इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। What is pestle model? Explain. अब बच्चों पेस्टल मॉडल जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये होपफुल क्वेश्चन, पर आपको आना चाहिए। So these 3 are very, very important questions. Let's take up these questions with answers. Now, what is the purpose to scan the environment? अब भाई क्यों? अब यहाँ पर ना पर्पस का मतलब मैं समझा दूं, भाई क्यों करना है, why? कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि एनवायरमेंट स्कैनिंग भी जरूरी है। वो तो सिर्फ काम स्टार्ट कर ले। नो, ऐसा नहीं है। आपने ये देखना है कि भाई वाई रिक्वायर्ड क्यों है, जरूरी क्यों है, मैंडेटरी क्यों। देखिए, द पर्पस ऑफ स्कैनिंग द एनवायरमेंट in the context of business and entrepreneurship is to gather information and insight about the external factors that can affect a business success. तो बच्चों इसका आंसर ये, business and entrepreneurship is to gather information and insights about the external factors, जिसकी बात हम कर चुके हैं, that can affect the business success. Environmental scanning helps entrepreneurs and businesses. अब क्या क्या आप करते हैं एनवायरमेंट स्कैनिंग में? पहला है आइडेंटिफाई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द मार्केट। ओह गॉड, सच एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। भैया आपको ये पता होना चाहिए कि इन मार्केट्स की एडवांटेजेस क्या हैं, और यहां पर आपको डिसएडवांटेजेस क्या हैं। और अगर आप जल्दी में हैं
जल्दी में है नुकसान करवाने के, तो इन चीजों को आप नजरअंदाज कर देंगे। तो नहीं नहीं, कोई थ्रेट नहीं, मेहनत करने वाले के लिए कोई थ्रेट नहीं है, ऐसा नहीं है। थ्रेट्स होते हैं मार्केट के अंदर। तो ये फायदा है जब आप मार्केट स्कैनिंग के पर्पज को जानेंगे। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट, एंटीसिपेट चेंजेस इन कस्टमर्स प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर। आप ये देख सकते हैं कि भैया जो मैं प्रोडक्ट या सर्विस यहाँ बेचने वाला हूँ, यहाँ पर कस्टमर का वो प्रेफरेंस है, क्या वो बिहेवियर है, वो मेरे प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदेगा, और नहीं है तो आप वहां पर जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आप अपना काम नहीं चला सकते। बच्चों, आप कभी भी एलीट जो प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल, अब आपने रेयरली सुना होगा किसी कंट्री के अंदर एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए आउटलेट्स खुले, रेयरली खोलता है। उसका कारण ये है कि बच्चों, जो ये प्रोडक्ट्स हैं, गैजेट्स हैं, वो इतने एलीट हैं कि हर कोई उसको खरीद सकता है पर खरीद नहीं पाएगा। तो वो उन्हीं एरियाज में अपना आउटलेट खोलेंगे जहां पर यू नो फिजिबिलिटी ऑफ सेलिंग इज मोर देन अदर प्रोडक्ट अदर एरियाज। वो किसी ऐसे एरिया में नहीं अपना आउटलेट खोल लेंगे जहां पर सिर्फ आउटलेट खोल के बैठ गए हैं और काम नहीं चल रहा। Are we getting it? Third, stay informed about economic, political and technological developments। और महंगाई है, रिसेशन है, और पॉलिटिकली गवर्नमेंट स्टेबल है, अनस्टेबल है, टेक्नोलॉजिकली लोग एडवांस्ड हैं, नहीं एडवांस हैं, डेवलपमेंट्स आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, इसके बारे में भी अवेयर होना बहुत जरूरी है। अडेप्ट देयर स्ट्रैटेजीज टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। देखिए, जैसे जैसे सर्कमस्टांसेस बदलेंगे, आपकी स्ट्रैटेजीज भी बदलनी चाहिए। हमेशा याद रखिएगा नोकिया का एग्जाम्पल, जब नोकिया के पास सिम्बियन था, एट दैट टाइम इन द ईयर 2000, ये टेक्नोलॉजी बहुत रेयर थी और तभी ये कंपनी मार्केट लीडर थी। बट विद द चेंजिंग टाइम, एंड्रॉयड हैड कैप्चर्ड द मार्केट, सो दैट्स is mandatory. By the time the scenario is changing, you should change with the changing scenario. Are you getting it? Make informed decisions and reduce risk। और जानकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप डिसीजन मेकिंग करिए। आप अंधेरे में तीर मत चलाइए कि क्योंकि आप सोच रहे हैं ये सही होने वाला है, नहीं होने वाला। तो मेक इन्फॉर्म डिसीजंस। आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद डिसीजन मेकिंग कीजिए, विच विल हेल्प यू टू रिड्यूस रिस्क। आप देखते हैं कुछ लोग 3 साल बिजनेस करते हैं, 3 years के लिए, और दे स्टार्ट ग्रोइंग। कुछ लोग 10 साल करते हैं, दे स्टार्ट ग्रोइंग। और कुछ लोगों को शायद 20 साल करना पड़ता। तो अब आप ऑप्शन आपकी है कि अगर आप मार्केट स्कैन करते हैं और उसके बेसिस पर बिजनेस करते हैं, तो इतने से वक्त में आप सुपरसीड कर जाएंगे सर। और अगर मार्केट स्कैनिंग के बिना करेंगे तो शायद इससे भी ज्यादा साल लग जाए आप, इससे भी ज्यादा साल, दैट इज 20 years। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ टू स्कैन द एनवायरमेंट? द पर्पस इज वेरी। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। व्हाट आर द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटी? कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके बेसिस पर आप अपॉर्चुनिटीज को सेंस कर लेते हैं? Sensing entrepreneurial opportunities involve considering various factors, including, जो पॉइंट्स में डिस्कस कर चुका हूं दोबारा नहीं करूंगा, आपको पता है। मार्केट रिसर्च टू आइडेंटिफाई अनमेट नीड्स एंड प्रॉब्लम का जो ये बहुत बार वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, और आपको भी अपने आंसर्स में इस शब्द का इस्तेमाल करना है। नीड्स जिन्हें मीट नहीं किया गया। रिकॉग्नाइजिंग इमर्जिंग ट्रेंड्स और शिफ्ट इन कंज्यूमर बिहेवियर, जो जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, रिकॉग्नाइज।
assessing technological advancements and for potential application. टेक्नोलॉजी में जो भी एडवांसमेंट्स आ रही हैं वो आपके प्रोडक्ट्स, आपकी सर्विसेज में भी नजर आनी चाहिए। जो भी पॉसिबल एप्लीकेशन है इसके लिए आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। एनालाइजिंग कॉम्पिटिशन एंड गैप्स इन द मार्केट, जो भी कॉम्पिटिशन है मार्केट में उसको आपने एनालाइज करना है, और जहां जहां आपको गैप लगता है और लगता है कि आप उस गैप को फुलफिल कर सकते हैं, उस पर आपको काम करना है। अंडरस्टैंडिंग रेगुलेटरी चेंजेस एंड देयर इम्प्लीकेशंस, जहां जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर स्ट्रिंजेंट और आपको काम करना उस पर जरूरी है, वो तो करना ही पड़ेगा, उसके के बिना गुजारा भी नहीं है, तो वो करना है, उसे फॉलो करना है। आप लेजिटिमेट बिजनेस चलाइए, इनलेजिटिमेट बिजनेस मत चलाइए। हैविंग अ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव माइंडसेट टू जनरेट न्यू आइडियाज, और आपने ना रुकना नहीं, आपने अच्छे से अच्छे आइडियाज क्रिएट करते चले जाने। आप क्या जानते हैं कि कब कौन सा आपका आइडिया आपके आने जाने वाले कंज्यूमर्स और कस्टमर्स को पसंद आ जाए। तो what are the factors involved in sensing opportunities? These are the factors, 6 factors which are involved in sensing opportunities. भाई मार्केट की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको सेंस कैसे करना है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो ये फैक्टर्स 1 2 3 4 5 and 6. Let's move on to the third question. ड्रॉ द एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम। कुछ और आए ना आए, ये क्वेश्चन आपको 3 से 5 मार्क्स में एग्जाम में जरूर आए। तो बच्चों, दिस इज द एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम। आप मेरी इसकी क्लासेस मैंने इस पर बनाई हुई, आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, एंड यू विल गेन इन डेप्थ नॉलेज अबाउट एंटरप्राइज प्रोसेसेस। अच्छा जी, एन एंटरप्राइज प्रोसेस diagram usually includes elements such as opportunity spotting by analyzing the needs and problems that exist in the environment. पहला जो पॉइंट है वो है आपका अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करना। कहां कहां पर अपॉर्चुनिटीज है वो आपने स्पॉट करना। सेकेंड इज इवेल्युएटिंग सिस्टम, इवेल्युएटिंग द आइडियाज रिसीव फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू फाइंड अ क्रिएटिव सोल्यूशन। फिर आपने उन आइडियाज को इवेल्युएट करना है क्रिएटिव सॉल्यूशंस बनाने के लिए। थर्ड इज आइडेंटिफाइंग अ प्रोडक्ट और सर्विस थ्रू इनोवेशन। उसके बाद आपने आइडिया जनरेट कर लिया, इवेल्युएट कर दिया उसको, आपने आइडेंटिफाई किया एक प्रोडक्ट या सर्विस जिसे आप इनोवेटिव तरीके से लॉन्च करें। सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट एंड नर्चरिंग इट टू सक्सेस। फिर आपने प्रोजेक्ट को सेटअप करना है और उसका रेगुलर यूसेज करना है in order to make people's life easier and comfortable, and then you can start running a business. So देखिए बच्चों, पहले जो अगर हम एंटरप्राइज प्रोसेस डायग्राम की बात करें तो देखिए ये जो समाज में ना प्रॉब्लम्स और नीड्स एग्जिस्ट करती हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं और जरूरतें भी। पहले तो आपने अपॉर्चुनिटी स्पॉट करनी कि भाई कहां पर आप इन प्रॉब्लम्स और नीड्स में हेल्पफुल हो सकते। आपने क्रिएटिविटी के थ्रू आइडियाज जनरेट करने, क्रिएटिविटी एंड आइडियाज जनरेट करने ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, बिकॉज यू वांट एन अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग, यू आर डूइंग अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग। आपने इनोवेशन के बेस पे प्रोडक्ट बना देना है, प्रोजेक्ट के बेस पे बिजनेस को रन। अच्छा, sensing entrepreneurial opportunities is thus a process of converting an idea into an। अब सेंसिंग entrepreneurial opportunity क्या है? Is thus a process of converting an idea into an opportunity and then into an enterprise. Now this is, I'll put in quotes. अगर आप इसे इतना ही लिखेंगे तो you will get very good marks. Sensing entrepreneurial opportunities is thus a process of converting an idea into an opportunity and then into an enterprise. We can see clearly that the first stage is to spot the needs by looking into the needs and the problems that exist. Second is
For example, in the second case study on the travel khana of Pushpinder Singh, we can clearly see that the entrepreneur stuck on the idea of starting the venture when he faced problems himself. जब पुष्पिंदर सिंह को while traveling खुद से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, तब उन्होंने इस आइडिया को जनरेट किया था, where he was serving hot meals to people on the go. आपको याद होगी, अगर आपने ट्रैवल खाना की केस स्टडी देखनी है तो हमारी क्लासेस पर एक केस स्टडी फ्री है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. 12th की सारी केस स्टडीज, 11th की सारी केस स्टडीज हमने यूनिट स्टार्ट करने से पहले ही अपलोड कर दी. यू प्लीज गो एंड चेक इट आउट. So in the second case study of on travel khana, we can see clearly that the entrepreneur struck himself on the idea of starting the venture when he faced the problem himself while traveling. It is then he saw the opportunity that people are ready to pay money for good quality food while traveling. These components represent the stages and steps involved in the entrepreneurial processes from idea generation to running a successful business. So if you are an entrepreneur and you want to create ideas and want to run a successful business, so these are the steps needed, where you have to spot an opportunity, creativity and ideas, innovation and product, and then you can run your project in the form of a business. और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो पुष्पिंदर सिंह की केस स्टडी में से हमने लिया है. एंड लाइकवाइज मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन क्लासेस, जिसे हम एबीसी क्लासेस कहते हैं, जो हमारी एबीसी क्लासेस हैं, अब देखिए इनको स्टार्ट करने की वजह क्या है. हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चे ऑल ओवर कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं and they are not finding resources for themselves to study entrepreneurship in detail, we are one stop solution for it. We are one stop solution for it. और अभी आप देखिएगा जब हम आगे चैप्टर्स में आएंगे, when we are going to do business arithmetic, तो हमारी क्लासेस are going to be the one stop solutions for you all. चलिए, let's move on to the fourth question. What is PESTLE? बच्चों, इस एक्रोनिम से आपने ना पहचानने की कोशिश करनी है कि this specific acronym, this specific question is of great importance. जल्दी पूछा जाएगा, आप लिख सकेंगे इसके ऊपर, पर आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए. PESTLE का मतलब है P stands for political, economical, social, technological, environmental and legal. तो इन 6 वर्ड्स को मिलाकर PESTLE एक्रोनिम का क्रिएशन किया गया है. Let's take up the answer. The PESTLE model, also known as PESTLE, कहीं पर बच्चों ये PSTEL लिखा जाता है और कहीं पर PESTLE लिखा जाता है, is a strategic framework used by businesses and organizations to analyze and understand the external macro environment. एक माइक्रो एनवायरमेंट होगी छोटी, एक मैक्रो होगी बड़ी. और पेस्टल क्या है? एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरमेंट को जो एनालिसिस का किया जा सकता है, इसके बेसिस पे किया जा सकता है. दैट कैन इम्पैक्ट देयर ऑपरेशंस एंड डिसीजन मेकिंग, जिसके बेसिस पर बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ऑपरेशंस और डिसीजन मेकिंग को जस्टिफाई कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं. हम इन पॉइंट्स को ले चुके हैं: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल. तो जब आप इन पॉइंट्स को एग्जाम में लिखेंगे तो एज पर द रिक्वायरमेंट्स, अगर आपको आता है 50 वर्ड्स में आंसर करना है तो सिर्फ आपने इनका फुल फॉर्म दे देनी है: पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल. और अगर आपको लगता है कि इस पर आपको 100-200 वर्ड लिखने, देन यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी. So I'm not going to take up these acronyms now. Let's move on to the next question. अब है short answers. Answer to these questions should not exceed more than 75 words. अब हम उन questions की तरफ आ रहे हैं जहां पर सिर्फ 75 words, less than 100 words में आपने आंसर देने हैं, और ये questions एग्जाम में पूछे जाते हैं.
यहां पर भी 4 क्वेश्चंस आर गिवन ओनली. First question, enlist the various sources which lead to the emergence of basic ideas. Second question, write the meaning of product identification in terms of business opportunity. Third question, what are the factors an entrepreneur has to keep in mind while assessing the market? Fourth question, what are the various ways in which an entrepreneur spots trend? Entrepreneur spots trend. अब बच्चों ये ना क्वेश्चन लगते बड़े आसान हैं. भाई अभी तो मैं आपके साथ डिस्कशंस कर रहा हूँ, टीचर इज इन फ्रंट ऑफ यू, आंसर लिखते हुए आ रहे हैं तो आसान लगते हैं. अदरवाइज इट इज नॉट दैट इजी. Are we getting it? What are the factors an entrepreneur has to keep in mind while assessing the market? तो इसके ऊपर आपकी कमांड होनी बहुत जरूरी है. आपको समझना है, आपको पॉइंट्स फॉर्मेशन करना है और पॉइंट्स को लर्न करना है, so that whenever these sort of questions comes in the paper, you find yourself rightly equipped to write the answer. Let's have a look towards the answers to all these questions. Enlist the various sources which lead to the emergence of basic idea. अब कौन कौन से ऐसे sources हैं जो आइडिया फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करते हैं, आपकी मदद करते हैं. Basic business ideas can emerge from various sources including, आज जो बिजनेस आइडियाज है कहां कहां से आ सकते हैं? पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफाइंग अनमेट नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, कंज्यूमर फीडबैक एंड सजेशन. आजकल आप देखते होंगे ई कॉमर्स साइट के ऊपर कोई भी आप प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं उस पर रेटिंग्स क्या क्या, अंडर 5 रेटिंग्स होती हैं या 5 रेटिंग्स होती है, 5 स्टार होते हैं. तो जिस किसी प्रोडक्ट पे 4.9 स्टार्स मिले होते हैं तो आपकी प्रेफरेंस को खरीदने की बढ़ जाती है. तो ये कंज्यूमर फीडबैक, और इसके बेसिस पर आपको बेसिक आइडियाज जनरेट करने का की हेल्प मिलती है. फिर मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस, आप मार्केट को रिसर्च करते हैं, स्कैन करते हैं, ये देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, इसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में है या नहीं. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड इनोवेशन, कितना टेक्नोलॉजिकली आपके कंटेंडर्स मार्केट एडवांस हो चुकी हैं, कितने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो आप पीछे रहने वाले नहीं. ट्रेंड्स एंड चेंजेस इन द इंडस्ट्री, क्या दौर चल रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं और कितनी स्पीड से आ रहे हैं. बच्चों मैं तो खुद देख के हैरान हूं, जो ये चेंजेस इन इंडस्ट्री है, ट्रेंड तो लगभग आज ही वही बने हुए हैं, बट जो चेंजेस आ रहे हैं ये तो मतलब मैं खुद से आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ इन अ टर्म ऑयल कि इतना चेंज रैपिड है. व्हाट यू आर गोइंग टू, यू डू नॉट नो दैट. आजकल आप ऑटोमोटिव एग्जाम्पल ले सकते हैं, हर छोटी छोटी कंपनी रेगुलरली मॉडल्स को ऑल्टर कर रही है, चेंज कर रही है, एंड एट अ वेरी ग्रेट स्पीड, नॉट वंस, मतलब थ्राइस और 4 टाइम्स इन अ ईयर. अब कंज्यूमर्स तो वही, प्रोडक्ट क्वालिटी भी वही है, तो फिर बेचना कितना मुश्किल हो रहा है. देखिए ट्रेंड्स तो आज ही बाइक के ही हैं, पर बाइक में वैरायटी कितनी आ गई, फ्रॉम 100 cc टू 500 cc, तो हमारी कंट्री मैन्युफैक्चर हो रहे हैं. अब तो उसके बियॉन्ड भी हम लोग जा रहे हैं. अब कार्स में देख लीजिए, पहले कहाँ पेट्रोल BS6 आया करता था, अब ईवीज आ गई हैं, अब CNG, अगेन, और पेट्रोल के टाइम की बात हो गई है, ईवीज आ गई हैं. उसके बाद आपकी हाइब्रिड कार्स आ गई हैं, गैसोलीन पे चलने वाली गाड़ियां आ गई हैं, हाइड्रोजन कार्स आर गोइंग टू हिट द मार्केट. तो आप क्या खरीदेंगे क्या नहीं खरीदेंगे, तो चेंजेस आर वेरी फास्ट. और ये क्या करते हैं, आपको बेसिक आइडियाज को डेवलप करने में आपकी मदद करते हैं. और जो इसके साथ नहीं चलेगा, either that company will lag behind or will find itself out of the collaboration and brainstorm. आपको कोलैबोरेट करना चाहिए, लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए. लोगों के साथ जब आप कोलैबोरेट करेंगे, टीम वर्क बनाएंगे, यू आर गोइंग टू मेक बेटर प्रोडक्ट्स. Entrepreneurial networks and communities, you have to form networks, you have to move into communities where you can serve those people well
and where you can start, making good products and services for the people with the help of your network. आपका नेटवर्क अगर अच्छा है तो you can serve, variety of, communities in the country every now and then. अगर आपका नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है तो you will find yourself stagnated at one point. So enlist the various sources which leads to emergence of basic ideas, and these are those 8 basic ideas. Write the meaning of product identification in terms of business opportunity. तो अब आप किस बेसिस पर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेंगे टू फाइंड आउट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर योर्स? सो इसका मैंने जो आंसर प्रिपेयर किया है वो 3 पॉइंट्स में है बच्चों. Product identification in the context of business opportunity refers to the process of recognizing and defining a specific product or service that addresses a particular market need or solves the problem. तो बच्चों प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन को अगर आप देखना चाहते हैं in the context of business opportunity, it refers to recognizing and defining a specific product. एक specific product को आप recognize करें, उसे define करें, और service को that addresses a particular market need and solves the problem. एक अच्छा प्रोडक्ट वही है जिसे आप मार्केट की नीड के हिसाब से तैयार करें, जो कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. It involves identifying the key characteristics, features and benefits of the product and determine how it fits into the market. और इसमें आप प्रोडक्ट के की फीचर्स, की कैरेक्टरिस्टिक, लाइक प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, और कैसे वो मार्केट में फिट होता है, दैट इज वेरी. इसे कहा जाता है बच्चों फैबिंग. अगर आपने देखना है कि एक प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक मार्केट में फिट इन हो सकता है तो आप फीचर्स, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स बताते जाइए. और अगर वहां के लोग उन फीचर्स, एडवांटेज और बेनिफिट से अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते होंगे तो दे आर श्योरली गोइंग टू गो फॉर दैट प्रोडक्ट. बाबा एक आप एग्जांपल लीजिए. फर्नीचर की जो शॉप्स है ना, आपको तकरीबन हर जगह मिल जाएगी क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है ना हर घर के अंदर. आपको जो मदर डेयरीज हैं ये आपको तकरीबन हर एरिया में 3 से 4 मिल जाएगी, क्योंकि जो मिल्क की कंजम्पशन है एफएमसीजी प्रोडक्ट की, ये हर जगह. आपको ग्रोसरी शॉप्स, किराने की दुकानें हर जगह मिल जाएगी क्योंकि ये रिक्वायरमेंट हर जगह. अगर मार्केट आपके घर से 2 किलोमीटर दूर है तो आप ये देखेंगे आपके गली के कोने पर भी एक किराने की दुकान खुली है. तो ये क्या है? ये फीचर्स एंड बेनिफिट. भाई फीचर क्या है? किराने की दुकान है. और बेनिफिट क्या है कि ये चीजें हर किसी को हर वक्त चाहिए, और अगर घर के पास है तो यू कैन गो एंड फेच इट फ्रॉम दैट पर्सन एंड ऑन टॉप ऑफ इट ऑन क्रेडिट. तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज. थर्ड पॉइंट, effective product identification is essential for creating a compelling business opportunity as it forms the basis for developing and marketing the products to potential customers. तो बच्चों अगर आप इफेक्टिव प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि भैया यही प्रोडक्ट इस मार्केट में बिकेगा और मैं इसी का काम करूंगा, इज असेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ कंपेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी. चाहे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहां औरों को नजर आ रही हो या ना आ रही हो, पर वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहां पर क्रिएट हो जाएगी. as it forms the basis for developing and marketing the product for potential customers. और वहां पर possible customers भी create हो जाएंगे and then they have strategies to develop and market those products to those people. कहने का मतलब क्या है कि बच्चों आपने सिर्फ ये देखना है कि उस मार्केट में क्या क्या किस किस टाइप के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगर
आप उसे क्रिएट कर पाते हैं तो आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाने में सक्षम हैं। और उसके ऑन टॉप ऑफ इट आपका हार्ड वर्क है, आपका एंथुजियाज्म है, और आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी है, ड्यूरेबिलिटी है, एंड प्राइस रेंज। So write a meaning of product identification in the terms of business opportunity. Third question. What are the factors an entrepreneur has to keep in mind while assessing the market? तो जब मार्केट को असेस करना है तो कौन कौन से फैक्टर्स माइंड में रखने हैं? They are similar. When assessing the market, entrepreneur need to consider several factors including target customers, demographics and preferences. आप कौन से किस प्रकार के कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम वहां पर कितना है, और उनकी क्या क्या प्रेफरेंसेस, क्या मार्केट साइज है और ग्रोथ पोटेंशियल। जिस मार्केट को आप टैप कर रहे हैं उसका साइज कितना बड़ा, वहां पर आपको रोज के 100 कस्टमर्स आ रहे हैं, 200 कस्टमर्स आ रहे हैं, या फिर हजारों कस्टमर्स आ रहे हैं। तो उस हिसाब से आप ग्रोथ पोटेंशियल और प्रोडक्ट रेंज भी रखें। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप एंड राइवलरी, ऑब्वियसली जब आप छोटी मार्केट्स में काम करेंगे तो कंपटीशन और राइवलरी आपको कम मिलेगी, बड़ी मार्केट्स में आपको कंपटीशन ज्यादा मिलेगा और राइवलरी भी ज्यादा मिलेगी। प्राइसिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस रेंज बहुत एमिकेबल रखते हैं, अपना प्रॉफिट थोड़ा कम रखते हैं, आपके पास प्रोडक्ट रेंज बहुत ज्यादा है, तो आप मान के चलिए आपका काम चला लें। अब आप मैकडोनल्ड्स में जाते हैं तो आप वहां पर 50 रुपए में एक बर्गर और एक छोटा कोक पी सकते हैं। तो वो इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि चाहे तो आप 200 रुपए का भी खाना खा सकते हैं, चाहे तो आप 50 रुपए का भी खाना खा सकते हैं। अगर वहां पे ये प्राइस रेंज कर दे वो आज से कि भैया हम तो सिर्फ 500 रुपए का खाना बेचेंगे, इससे नीचे नहीं बेचते, आप देख लीजिए। जिस स्पेसिफिक कस्टमर्स के उसको बनाया गया है ना, वो कस्टमर आना ही वहां बंद कर दे। स्ट्रेटेजी देखिए, क्या उनका ऑम्बियंस है, क्या उनका प्रोडक्ट क्वालिटी है, द वे इट इज गॉट सर्व टू यू। ऐसा लगता है घर में बन रहा है खाना। एंड प्राइस रेंज इज सोल्ड। अच्छा, अब प्राइस रेंज आप नहीं बढ़ा सकते। प्रॉफिटेबिलिटी आप इनिशियली कम लेके चलिए, वॉल्यूम्स पे खेलिए, जैसे मैकडोनल्ड्स करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड लॉजिस्टिक्स, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आप बढ़ा लें, लॉजिस्टिक्स अपना अच्छा कर लें। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का मतलब है एक आपकी बड़ी फैक्ट्री है जहां पे प्रोडक्शन हो रही है, ये आपकी फैक्ट्री है। अब आप कंट्री के 4 एरियाज को कैप्चर करना चाह रहे हैं तो 4 आपने बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स बना दी, जो एक बार में बल्क में आपका माल खरीद रहे हैं। 4, 3, 2, 1। और फिर वो छोटे छोटे एरियाज मार्केट्स को वहां या और छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल सप्लाई करें इनका। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रॉन्ग है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या, माल डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका। ये हो गया 1, 2, 3 एंड 4। ये भाई लग रहा है ये 4। अच्छा जी, रेगुलेटरी एंड लीगल कंसिडरेशंस। अब आपको कोई भी काम खोलना है, पेपर वर्क भैया पूरा होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते काम शुरू कर लिया आपने जीएसटी नहीं लिया, आप डायरेक्टर बन गए आपने डिन नंबर नहीं लिया, तो ये चीजें रिक्वायर्ड है। करने से पहले आप सोच लीजिए। वॉरेन बफे एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कहते समुद्र में कूदने से पहले समुद्र की गहराई आप एक टांग से नाप लो, दोनों से मत नापो। मतलब आप कूद की गहराई मत नापो, हो सकता है आप डूब ही जाओ। तो जब भी आप बिजनेस करें ये बात आप बिल्कुल यू नो ऑन टॉप ऑफ प्रायोरिटी रखें, दैट यू कैन नॉट go illegal and develop your business. You have to come under a scanner where you are being scanned and your business is being scanned. Economic conditions and trends. Economically, the country is stable or non-stable, or inflation है, recession है, that you need to cross check. Trends क्या चल रहे हैं, उस हिसाब से business grow करना है, उस हिसाब से business develop करना है. Technological advancements affecting the market, same points. Social and cultural factors influencing consumer behaviors.
or socially or culturally, how growth oriented the country is or the market is, उस हिसाब से consumer behavior आपके काम को influence. तो बच्चों, these are, I believe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 factors an entrepreneur has to keep in mind while assessing the market. Let's move on to the next question. Yeah. What are the various ways in which an entrepreneur spots trends? अब दौर को ट्रेंड करना है कि सॉरी स्पॉट करना है कि क्या दौर चल रहा है. बच्चों, एक दौर वो था कि हम स्कूल जाते थे तो हमारे पास स्क्वायर हॉरिजॉन्टल बैग हुआ करते थे. एक तरफ बुक्स आती थी, एक तरफ कॉपीज आती थी. इधर टिफिन आता था और यहाँ पर पेंसिल बॉक्स आता. और वाटर बॉटल हम लेके नहीं जाते थे. मैं तो कंधे वाली लेके जाता था. आजकल आप देख लीजिए, पिट्ठू बैग्स हैं और उन्हें कैसे डिजाइन की, वो ट्रेंड चल रहा है. अब अगर आज की डेट में वो जो अब मुझे पता नहीं कि आपने देखे या नहीं देखे, वो जो ऐसे इस टाइप के हॉरिजॉन्टल बैग्स आते हैं, बड़ी यादें जुड़ी हैं इस बैग के साथ. और यहाँ पे 2 क्लिप्स हुआ करते थे और उसे पार्टीशन होता था. तो 2 पार्टीशन होते थे. एक ऊपर लंच बॉक्स टिफिन आ जाता था और आपका पेंसिल बॉक्स आ जाता था. और नीचे एक तरफ मैं क्या करता था, मेरी मदर मुझे छोटे छोटे जैसे कपड़े के तकिए क्या जो गिलाफ हम चढ़ाते हैं वो यूज करते थे. छोटे छोटे तकिए के वो बना के देती थी कपड़े, जिसमें मैं एक तरफ अपनी नोटबुक्स डालता था और एक तरफ अपनी बुक्स डालता था. और उसमें भी हमें ना बड़ा एंजॉयमेंट मिलता था. टुडे द ट्रेंड हैज चेंज. आजकल कोई बच्चा लेके नहीं जाता. तो इसको स्पॉट करना कि भाई क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या दौर चल रहा है, उस बारे में क्वेश्चन. देखिए, entrepreneurs can spot trends through various methods including market research. You know that what is market research? Industry analysis, networking, social media monitoring, technology scanning, consumer feedback, attending conferences and events. And by going through these 7 modes, an entrepreneur can spot trends. Let's take up the first one, market research. Searching the market again and again. Research, conducting thorough market research to identify emerging patterns and shifts in consumers behavior, preferences and demand. भाई ये देखना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक ट्रेंड को पकड़ लेते हैं तो ये कितने टाइम में ऑल्टर होगा, कितने टाइम में ऑल्टर होगा. अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कितने टाइम में ऑल्टर होगा? तो कैसे पता चलेगा? जो पहला ट्रेंड चेंज हुआ है, पहला ट्रेंड कब आया जी? 6 महीने पहले आया, ये 3 महीने पहले आया जी, 1 साल पहले आया. और चेंज कब हुआ कि 1 साल बाद हो गया. तो हम ये लेके चलते हैं कि 1 साल के बीच में ट्रेंड यहाँ पे ऑल्टर हो जाता है. अच्छा, इंडस्ट्री एनालिसिस, keeping a close watch on industry publication reports and news to stay updated on sector specific trends and innovation. अब बच्चों, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसका आपको पब्लिकेशन, मैं सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टरी करने के लिए आप जितने भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पेपर्स है, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स है, आप जरूर पढ़िए. आप चाहे पढ़े कम, उसे लगवा लीजिए एक न्यूज़पेपर. तो 200 से 300 रुपया खर्चा महीने का. आप इन पेपर्स को पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मार्केट्स में ना चल क्या रहा, कौन सा सीईओ आ रहा है, कौन सा जा रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों कई इंडस्ट्री कंपनीज आर डाइवर्सिफाइंग इन अदर इंडस्ट्रीज, क्यों सब चल रहा है, आपको पता चलेगा. फिर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे कि फला कंपनी ने क्यों अपने बिजनेस को चेंज कर लिया या क्यों नए बिजनेस में आ गए. न्यूज, स्टे अपडेटेड रहे उस सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेंड्स एंड इनोवेशंस के साथ. नेटवर्किंग and engaging with industry experts, peers and professionals to gain insight into current future trends. अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर लोग हैं इसको मानते नहीं. लोगों को यही लगता है कि बस मुझे सब कुछ आता है और मुझे क्या जरूरत है एक्सपर्ट्स के साथ मिलने की. ये क्या बात? आप अच्छा नेटवर्क फॉर्म कर सकते हैं, आप लोगों से मिल सकते हैं. कहते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने एक्शन लिया और आप फेल हो गए. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यू लिव इन इनएक्शन. अब एक्शन लेते ही नहीं है. अच्छा बुरा तो दूर की बात है, लेते ही नहीं है एक्शन. अच्छा जी, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग. सोशल मीडिया में आजकल क्या चल रहा है? मॉनिटरिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू ट्रैक डिस्कशन, हैशटैग्स,
mentions related to industrial product trends. अब ऑटोमोटिव में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ग्रोथ आ रही है? देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बताता हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो एक डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जब मैं एमडी से मिलता हूं तो वो मुझे यही सजेस्ट करते हैं। देखिए होता क्या, अब आप मेरी बात बड़े ध्यान सुनिएगा। अब मैं फॉर एग्जाम्पल एक इंजीनियर हूं और बहुत टाइम से मैं बड़ी पोजीशन पे कंपनी में काम कर, अब मेरी एज हो गई है 60 years। तो मुझे अब लगेगा कि यार अब ना मुझे काम नहीं मिले, ऐसा सोचना ही गलत है। क्योंकि बच्चों ये जो दो पॉइंट्स है ना, नेटवर्किंग, एंगेजिंग विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, अब 60 साल के बाद आप एक्सपर्ट बने हैं, पर एक्सपर्ट बने हैं वो एक दूसरा वर्ड है, पर अपने आप को एक्सपर्ट मानना भी तो जरूरी है। एंड देन यू कैन अप्रोच द कंपनीज विद इट। मेरी बात आप याद रखिएगा, डू नॉट गेट इम्प्रेस्ड बाय पीपल्स नॉलेज, दे डू नॉट हैव ऑल, सारी नॉलेज उनके पास नहीं होती, और यू हैव टू टैप इनटू पीपल। ओके, technological scanning or technology scanning, stay informed about technological advancements and how they can impact products and services। कितना कुछ बदल रहा है भाई, मतलब मैंने अपनी लाइफ टाइम में बहुत कुछ बदलता हुआ देखा। हमारे घर पे तो जब हम छोटे हुआ करते थे, फोन ही नहीं होता था, टेलीफोन, वायर्ड फोन नहीं होता। मुझे याद है हमारे घर में 1987 में पहला फोन लगा, 87 में। और कब बुक कराया था मेरे फादर ने? 1981 में। 6 years के बाद जाके नंबर आता था, पहले होता था ऐसे होता था, नंबर देर से आता था। तो जब मेरे घर पहला फोन आया, यू वोंट रियलाइज हाउ टेरिफाइड आई वाज। पहली बेल बजी तो मैं डर गया, मैंने फोन उठाया नहीं डर के मारे। मुझे भी वो दिन याद है, माय सिस्टर वाज विद मी, तो फोन बजा, घंटी बजी, तो मैं ओ मैं नहीं उठा सकता, मैं नहीं उठा सकता, यू पिक अप द फोन। तो ये उस टाइम की रीच हुआ करती थी हमारी टेक्नोलॉजी को लेकर। और आज आप देख लीजिए 2001 में, 2000 में मैंने पहला अपना फोन लिया था, मोटोरोला, पहला। और मुझे याद 3600 का, और उसके अंदर एक टाइम नहीं आता था उसमें, सिर्फ बैटरी इंडिकेशन आता था, आप बात कर सकते थे बस, टाइम भी नहीं आता था लिखा हुआ। तो जब मैंने ये फोन लिया तो मेरे दोस्तों ने कहा इससे अच्छा तो नोकिया के लिए चला जाता। तो उसके बाद मैंने 2 महीने में उसे बेच दिया, और मैंने नोकिया 3310 लिया। उसमें टाइम आता था, तो लोग टाइम आता है। उसके बाद 3330 आया, उसके अंदर इंटरनेट आता था। तो लाइक वाइज वी हैव सीन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। और इसी तरह एक एंटरप्रेन्योर को भी देखना पड़ता है कि मार्केट में टेक्नोलॉजी क्या कंडीशन चल रही है, एडवांस है या स्लो है। कंज्यूमर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू नॉट अंडर एस्टिमेट इट। इंप्रूव करना है तो कंज्यूमर फीडबैक्स आर इंपॉर्टेंट। Listening to customer feedback and complaints can reveal areas for improvements and innovation. Attending conferences and events, participating in industry conferences, trade shows, and seminars to learn about the latest developments and trends is important. By employing these methods, entrepreneurs can identify trends and leverage them to create and adapt products and services that meet evolving markets and needs. तो बच्चों, आपको ये सब चीजों पे काम करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेंड्स को इजिली स्पॉट कर पाए। अदरवाइज आप गलत ट्रेंड स्पॉट कर लेंगे, गलत जगह पे अपना पैसा लगा बैठेंगे, और फिर आसानी से आपको नुकसान होता चला जाएगा। Now let's start part D, which is long answers. Answers to these questions should not exceed more than 150 words. And in this part, we are having 5 questions. The first one is, an opportunity may be derived from the needs and the problems of the society. Comment. Second question is, sensitivity to environmental factors is essential for an entrepreneur. In the light of above statement, explain the importance of environment scanning. Third question, entrepreneurship does not emerge and grow spontaneously. Rather, it is dependent upon several various environmental factors. Explain them. Fourth question is, explain the creative process.
And fifth question is, what is innovation, and explain the elements of innovation process. तो बच्चों इन 5 क्वेश्चन के आंसर्स ये long answer questions हैं, and it should not exceed more than 150 words. So let's have a look toward the answer to these questions. First question: an opportunity may be derived from the needs and problems of the society. 100% right, ऐसा ही होता है. और आंसर में आप क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे? The first one is, opportunities often arise from identifying and addressing the needs and problems of the society. When entrepreneurs recognize unmet needs or issues within a community, they can develop innovative solutions that not only create value but also have the potential to generate profit. तो जब आप being an entrepreneur कोई भी unmet नीड्स ऑफ सोसाइटी देख रहे हैं, तो आप उसको ऑब्जर्व करें, एड्रेस करें, एंड देन ऑन इट्स बेसिस क्रिएट अ प्रोडक्ट एंड सर्विस, सो दैट वो अनमेट नीड्स या प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व कर सकें. और ऐसा इनोवेटिव सॉल्यूशन है जो आपके लिए प्रॉफिट्स को भी जनरेट कर सके. पोटेंशियल टू generate profits. Just a minute. Yeah, potential to generate profits. Solving societal problems or fulfilling the needs can lead to sustainable and socially responsible business venture. अब बच्चे मेरी बात आप याद रखिएगा, जो पॉइंट है कि सोसाइटी की प्रॉब्लम्स और नीड्स को आप फुलफिल करें और इट कैन लीड टू सोशली रिस्पॉन्सिबल बिजनेस वेंचर. अगर आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर सकती, तो यू कैन नॉट क्रिएट अ बिजनेस वेंचर. दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर. For example, a company that creates affordable and clean energy solutions addresses both environmental concerns and societal needs for sustainable power sources. आजकल बच्चों आप देख लीजिए कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही हैं, एंड दे आर प्रोवाइडिंग यू द इन्वर्टर्स विच यू कैन गेट चार्ज थ्रू सोलर एनर्जी. तो वो आपको in one way they are providing you both the things, environmental concerns को भी solve कर रहे हैं and sustainable power sources provide कर रहे हैं. So this is what problems are there in the society, and being into that industry you should focus on resolving people's problems. Second question: sensitivity to environmental factors is essential for an entrepreneur. In light of the above statement, explain the importance of environment scanning. अब बच्चों सेंसिटिविटी, जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, गुड हैं, बैड हैं, आपकी रीच में, आपकी रीच से बाहर हैं, आपको उसके लिए ना सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है. उसका मतलब है यू शुड नॉट अवॉइड देम, इग्नोर देम. तो आंसर इसका आप इस प्रकार से लिखेंगे: सेंसिटिविटी टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज इकोनॉमिक, सोशल, technological, regulatory changes is crucial for an entrepreneur because it directly impacts the success and sustainability of a business venture. बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है ये, मतलब मैं कह सकते हैं ये पॉइंट ऑफ द डे है. मैं यहां से इस पॉइंट को क्लिप कर देता हूं. सेंसिटिविटी टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बस सेंसिटिव रहना है आपने, आपने से इग्नोर नहीं करना है. किसको? इकोनॉमिक कंडीशंस को, सोशल कंडीशंस को, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस को और लीगल चेंजेस, वो बहुत क्रूशियल है आपके लिए. On environment scanning allows entrepreneurs to do the following things:
द फर्स्ट वन इज एंटिसिपेट मार्केट ट्रेंड्स एंड शिफ्ट इन कंज्यूमर बिहेवियर, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आइडेंटिफाई इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, अब आपको यहां पर स्वॉट अप्लाई करना पड़ेगा। जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वो आपको अपॉर्चुनिटीज दिलाएंगी, और जो आपकी वीकनेसेस हैं वो आपको थ्रेट्स दिलाएंगी। स्टे कंप्लायंट विद चेंजिंग रेगुलेशंस, जो भी रेगुलेशंस में चेंजेस आ रहे हैं आपने उसके लिए अवेयर रहना है। जनरली बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, बट इट्स अ पॉइंट ऑफ कॉशन। अडेप्ट स्ट्रेटजीज टू इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, और अगर आपको लगता है कि इकोनॉमिकली चीजें महंगी हो रही हैं, सस्ती हो रही हैं, तो आपको उसको नजर में रखना है, अवॉइड नहीं करना है। ये नहीं कि चीजें सस्ती हो गई हैं, आपका प्रोडक्ट आज भी उतना कॉस्टली बिक रहा है, या चीजें कॉस्टली हो गई हैं और आप लॉस मेकिंग बिजनेस करें, तो ऐसा नहीं। हार्नेस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर इनोवेशन, और आपने जितना हो सके अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अहेड रखना है ऑफ द पेस। मैं बड़ा एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों। मैं जब आज से 1-1.5 साल पहले पढ़ा रहा था, मैंने ऑनलाइन बहुत पढ़ाया है, 1-1.5 साल पहले पढ़ा रहा था, तो वहां पर मुझको मेरे पास i3 लैपटॉप था, और उस पर बड़ा अच्छा काम होता था, पर ना कुछ देर के बाद ना थोड़ा सा मैल फंक्शन करता था, जबकि वो नया लैपटॉप था भी। तो मुझे ये लगा कि अभी क्योंकि आप इतना इंटरनेट का रेगुलर यूसेज कर रहे हैं, लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू go for a better version of a laptop. Then I purchased, one 11 generation laptop, which is i5, and which is the latest one. उसमें और मेरे i3 के अंदर जमीन आसमान का डिफरेंस, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं शायद i7 और i9 के लिए जाऊं तो ये डिफरेंस और ज्यादा नजर आए। तो ये एंटरप्रेन्योर के साथ भी है। अगर आप अपने काम के लिए पुरानी टेक्निक्स, पुरानी मशीनें यूज कर रहे हैं, तो कस्टमर को सब पता है कि वेयर यू आर लैगिंग। अभी मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ पे एक स्टेशनरी शॉप खुला है, और उसने क्या किया है, वहां पर आपको बहुत बड़ा एक टेबल है, उस पर स्कैनर्स लगे हुए हैं। आपने कुछ नहीं करना, आपने अपना सामान उठाना है, एक पैकेट में रखना है, और उसको स्कैन करके पॉलिथीन में डालते रहना है ऐसे, और आपका बिल बन जाएगा, आपको बिल आ जाएगा। और आपने कुछ नहीं जाना, वहां बिल देना है, बिल स्कैन करना है। ये नई टेक्नोलॉजी। और पहले क्या होता था कि भैया ये प्राइस है, आप इतना दे दीजिए, इतना दीजिए, वो पुराने तरीके। अंडरस्टैंड सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस, और आज सोसाइटी बच्चों सोशल मीडिया है, हर वक्त चेंज हो रही है, और बहुत सारी चीजें हैं जो आ रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो रुक रही हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो जा रही हैं। तो अवेयर रहे। Essentially, environment scanning enables entrepreneurs to make informed decisions. बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है, जो मैंने 2-3 बार आज के सेशन में इसको यूज किया है। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, डिसीजंस है ना, किसी बेसिस पर लेना है, विदाउट बेसिस नहीं लेना है, इंफॉर्मेशन के बेस। रिड्यूस रिस्क, इससे रिस्क कम हो जाता है। अलाइन द बिजनेस विद डायनामिक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। थर्ड क्वेश्चन, entrepreneurship does not emerge and grow spontaneously, rather it is dependent upon several various environmental factors explained. तो entrepreneurship एकदम से तो लाइमलाइट में आने ही जाती है, इसमें बहुत सारे environmental factors हैं जो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, और वो कौन कौन से हैं? Entrepreneurship is influenced by a multitude of environmental factors, including the first one is economic conditions, social and cultural factors, technological advancements, legal and regulatory environments, competitive landscape, infrastructure, access to resources and market demands. अब बच्चों आपको, क्योंकि आंसर्स आर फ्रॉम द सेम चैप्टर्स, आपको कई पॉइंट्स ना रेपिटेटिव लगेंगे। इसमें से एक पॉइंट है जो नया आया है, और वो एफ पॉइंट, इसको मैं एक बार ले लेता हूँ। Infrastructure and access to resources, availability of physical and human resources, as well as supportive infrastructure affects entrepreneurial ventures, sorry, endeavors. अब बच्चों इकोनॉमिक कंडीशंस का आपको पता है, सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स का आपको पता चल चुका है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में बात कर चुके हैं, लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के बारे में बात कर चुके हैं, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप आप जानते हैं, मार्केट डिमांड्स आप जानते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, आपके पास जो एरिया है जहां से आप अपना बिजनेस रन करते हैं, दैट नीड्स टू बी एट अ स्पेसिफिक लोकेशन फ्रॉम वेयर
you can produce well, you can distribute well, and you can manage your staff. Availability of physical and human resources, ऐसे resources जो कि human beings है वो, और physical resources, office का सामान है, certain things which are needed in the office that is required, as well as supportive infrastructure. आपका जो infrastructure है बहुत supportive होना चाहिए for your work. Affects entrepreneurial vendors, वो entrepreneurial vendors को बहुत इफेक्ट करता है। मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा, बहुत ही बहुत ज्यादा। अगर आपका जो एरिया है वो स्पेसिफिक ऐसी जगह पे है जो हब है और जहां से बहुत सारी कंपनीज ऑपरेट करें, तो ऑब्वियसली आपको क्लाइंटेल बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द क्रिएटिव प्रोसेस। ये जरा इंपॉर्टेंट। अब क्रिएटिव प्रोसेस ये बच्चों क्वेश्चन है ना, बहुत बार आ चुका है 3 से 5 मार्क्स के अंदर। 5 मार्क्स। क्रिएटिव प्रोसेस में कौन कौन से 5 स्टेजेस हैं जो आपको बतानी है और एग्जामिनेशन में आपको लिखनी पड़ेगी। The creative process is a structured approach to generating innovative ideas and solutions. It typically involves several stages. और क्या क्या है, कोई भी आइडिया, अगर क्रिएटिव आइडिया की आप बात करेंगे तो उसके अंदर ये 5 स्टेजेस हैं। पहले है प्रिपरेशन, फिर है इंक्यूबेशन, फिर इल्यूमिनेशन, फिर वेरिफिकेशन और फिर इम्प्लीमेंटेशन। प्रिपरेशन का मतलब है बच्चों आपने इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, कंडक्टिंग रिसर्च and defining the problem or challenge. That is preparation. Preparation about something is only happens when you gather information. आज मैं को बड़ी मजे की बात बताता हूँ कि मैं बड़े सारे टॉपिक्स कर रहा हूँ इस महीने, और मैं बड़े सारे टॉपिक्स पे बोल भी रहा हूँ, एंड टफ टॉपिक्स, नए टॉपिक्स हैं। अब नए टॉपिक्स हैं तो इसका मतलब है उस पर इंफॉर्मेशन तो गैदर करना ही पड़ेगा। You cannot be a master of all the things, So I have started working on gaining information. मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ और उसके बेस पर अपना कंटेंट डेवलप कर रहा हूँ, और कंटेंट के ऊपर पढ़ के देख रहा हूँ, और जहां पर कंटेंट ऑडियंस के साथ सिंक नहीं हो रहा है वहां पर मैं रुक रहा हूं। तो प्रिपरेशन का मतलब क्या है? यू हैव टू गैदर इंफॉर्मेशन, कंडक्टिंग रिसर्च, डिफाइनिंग प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस। सेकंड इज इंक्यूबेशन, allowing the mind to process the information and ideas subconsciously। अब आपको उन आइडियाज को सबकॉन्शियसली इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेट बच्चों एक प्रोसीजर होता है जहां पर किसी आइडिया को प्रैक्टिकली लाने से पहले एक बार यूज करके देखा जाता है। इंक्यूबेटर्स कहाँ यूज किए जाते हैं? फॉर एग्जांपल हैचिंग एन एग, उसे वैसा एनवायरनमेंट दिया जाता है एग को जो एक्चुअली हैन देती है, तो वैसा एनवायरनमेंट उसको वहां हैच किया जाता है। तो उस एनवायरनमेंट से जैसे एग हैच होते हैं, और वो इंक्यूबेशन में वो उस टाइप के एनवायरनमेंट में को फील करते हैं कि एक्चुअली उनको मदर देती है। इल्यूमिनेशन, द आहा मोमेंट व्हेन अ नोवेल आइडिया और सॉल्यूशन इमर्जेस। इसके बाद आपका जो आइडिया है इल्यूमिनेशन में आएगा जहां पर आइडिया इमर्ज। वेरिफिकेशन, टेस्टिंग एंड रिफाइनिंग द आइडिया टू इंश्योर इट्स वायबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है आइडिया को टेस्ट करना, रिफाइन करना, री रिफाइन करना, ताकि जब ये मार्केट में आए, फ्लॉस तो तब भी आएंगे पर कम आए, जिसको आप एक बार 2 बार में ठीक कर सकते। इम्प्लीमेंटेशन, टेकिंग द आइडिया एंड पुटिंग इट इनटू एक्शन, और प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाकर आइडिया को लॉन्च कर देना है। The creative process encourages thinking outside the box and fosters innovation, making it essential for entrepreneurship. So बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंट। Fifth question. Innovation is the process of creating and implementing new ideas, products, services, or processes that brings value to individuals, organizations, or society. The elements of the innovation process typically includes, तो क्या क्या इनोवेशन प्रोसेस में एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ इनोवेशन प्रोसेस में क्या क्या होता है पहले देख लेते हैं। आइडिया जनरेशन, आइडिया इवेल्युएशन, डेवलपमेंट एंड प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड स्केलिंग, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को एक एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आइडिया जनरेशन, एक बार आपने आइडिया जनरेट कर लिया, द इनिशियल स्टेज वेयर इनोवेटिव आइडियाज आर कंसीव्ड थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग, रिसर्च एंड क्रिएटिव थिंकिंग। आइडिया जनरेट कर लिया कि आपने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना है। जैसे मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल हमने एक पेन बनाया,
फॉर एग्जाम्पल आइडिया जनरेट कर लिया, रिसर्च कर लिया कि मार्केट में किस किस टाइप के पेन्स और किस किस टाइप के पेन्स नहीं। मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगर मार्केट में आज 10,000 तरीके के पेन्स हैं तो कुछ तरीके ऐसे भी हैं जिस तरह के पेन्स नहीं है। आई एश्योर यू दैट। अब मेरे दिमाग में कई ऐसे आइडियाज। अच्छा, आइडिया इवेल्युएशन। अब आपने आइडिया क्रिएट कर लिया, पेन बनाने, उसे इवेल्युएट भी करना है। असेसिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द आइडिया, ये पॉसिबल है क्या? तो इतनी स्ट्रॉन्ग बड़ी बड़ी कंपनीज पेन्स बना रही है कि मैं टिक सकता हूँ? पॉसिबिलिटी। आपने आइडिया पॉसिबिलिटी को चेक करना। मार्केट में पॉसिबिलिटीज क्या है इस आइडिया को क्लिक करने के लिए? अलाइनमेंट विद द बिजनेस गोल। अगर आपने इस काम के अंदर 10 लाख रुपया लगा दिया है तो आप कब तक चाहते हैं कि पैसा आपको वापस आ जाए? डेवलपमेंट एंड प्रोटोटाइपिंग। अब आपने काम शुरू कर दिया है, टर्निंग द चूजन आइडिया इनटू टेंजिबल प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, पेन उस टाइप का। सर्विस और सॉल्यूशंस ऑफन थ्रू प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग। आपने प्रोटोटाइप बनाया और उससे बार बार टेस्ट किया। बच्चों, मुझे भी याद है कि हम जब छोटे हुआ करते थे तो हमारे टाइम पर एक बड़ा स्पेशल पेन आता था। उस पेन में ना मतलब इस टाइप का पेन होता था। आई स्टिल रिमेम्बर, इट वाज स्टील पेन, स्टील का पेन होता था। और मैं जरा उसकी कैप का यहाँ डिस्क्रिप्शन देता हूँ आपको। कैप पे ना यहाँ पे एक छोटी सी डिजिटल वॉच बनी होती है यहाँ पे, जैसे 5:05 ऐसे लिखा हुआ था। और पीछे से आप उसको टाइम को एडजस्ट कर सकते थे। बड़ा अच्छा पेन होता था। और हमारा को बहुत क्रेज होता था उस पेन का, यार वो पेन मिल जाए, बस वो पेन मिल जाए। और एक बार मेरे पास वो आया भी पेन, मैंने यूज भी किया उसका। तो बड़ा इसका ना हमारे को वो होती थी डिजायर कि ऐसा पेन होना चाहिए। दिखाते थे अब लोगों को, देखो हमारे पास ऐसा पेन। अब टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, इवेल्युएशन द इनोवेटिवनेस, इनोवेशन इफेक्टिवनेस। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ऐसा पेन बने जिसमें आपकी पेन ड्राइव भी, जिसमें आपका पेन भी हो, जिसमें आपकी एक पेंसिल भी हो, और जिसमें आपका मोबाइल पे यूज करने वाला ना, से आप विदाउट फिंगर टच एक वो सॉफ्ट सा रबर पैटर्न आता है, वो आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप 5-6 फैसिलिटीज डाल तो मेरे ख्याल से पेन बिकेगा, मेरे ख्याल से पेन बिकेगा। अच्छा, evaluating the innovation's effectiveness, quality and market acceptance, testing and feedback. आप टेस्ट कर लीजिए, आप जगह जगह जाकर उसको दिखाएं, उसका फीडबैक लें। इम्प्लीमेंटेशन एंड स्केलिंग, आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए, अब आपसे लॉन्च कर दीजिए। इंट्रोड्यूसिंग द इनोवेशन टू द मार्केट और ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपेंडिंग इट रीच, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स बना दीजिए, पेन को जगह जगह फैला दीजिए। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहिए। आज आपकी पेन में 5 फीचर्स हैं, कम ऑन, आफ्टर 2 months 8 new features, oh sorry, 8 features, for 10 features, for 12 features. Likewise, you can improvise. Continuous improvement, iterating and refining the innovation based on ongoing feedback and changing market dynamics. जैसे जैसे requirements आ रही हैं, आप उस हिसाब से उनको उसमें changes ला सकते हैं। Successful innovation requires a systematic and iterative process. बच्चों, अगर आप सक्सेसफुली किसी चीज में इनोवेशन करना चाहते हैं तो इट रिक्वायर्स अ सिस्टमैटिक एंड इटरेटिव प्रोसेस। इटरेटिव का मतलब है रीडूइंग, रीडूइंग। एक बार किया, फेल हुए, दोबारा किया, फिर फेल हुए, दोबारा किया, फिर इस तरीके से इनोवेशन होता है। To ensure that novel ideas are transformed into practical and valuable outcomes. So innovation is a process of creating and implementing new ideas, products and services or processes that brings values to individuals, organizations or society. The elements of the innovation process typically, this is the challenge. Let's move on to the part E. Very long answers. Answers to these questions should not exceed 250. होप सो हमारे पास यहाँ पर काफी सारे रेपिटेटिव पॉइंट्स आएंगे, तो उनको भी हम देखेंगे। 5 क्वेश्चन है बच्चों यहाँ। इलेबोरेट द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज। इलेबोरेट करना है आपको उन फैक्टर्स को जिसमें आप अपॉर्चुनिटीज को सेंस कर सकते हैं। एग्जामिन द सोर्सेज वेयर बिजनेस आइडियाज emerge. Discuss the steps involved in investigating of ideas. Fourth, what do you understand by trend spotting? What are the ways by which an entrepreneur can spot trends? And fifth one is explain in detail idea field. So let's take up these points, these questions one by one. Elaborate the factors involved in sensing opportunities.
Sensing on opportunities is a crucial aspect of entrepreneurship, and it involves several factors, including market research, consumer insights, technological advancements, environmental scanning, networking, creativity and innovation, problem identification, feedback and बच्चों इसमें हम जनरली सारे वही पॉइंट्स लेंगे जो हम पहले ले चुके हैं, बट यस इट्स अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो आपने मार्केट रिसर्च में कुछ पॉइंटर्स ऐड करने हैं। यहाँ पर एक नया पॉइंट है जो मैं भी टच करूंगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हम कई बार ले चुके हैं, एनवायरमेंट स्कैनिंग हम ले चुके हैं, नेटवर्किंग हम ले चुके हैं, क्रिएटिविटी इनोवेशन हम ले चुके हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हम ले चुके हैं, एंड फीडबैक एंड इटरेशन हमने अभी रिसेंटली लिया है। अब कंज्यूमर इनसाइट्स क्या है, देखिए, अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, प्रेफरेंसेस एंड पेन पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर एड्रेसिंग देयर नीड्स। अब जो बहुत जरूरत है कि उनके पेन पॉइंट्स, कहां पर कंज्यूमर को ना कष्ट है, वो आपने पहचानना है बीइंग एन ऑन, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर्स, प्रेफरेंसेस एंड पेन पॉइंट्स। मैं बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, अभी मैं एक रेस्टोरेंट में गया था कुछ दिन पहले साउथ इंडियन फूड के लिए, और वो हार्ट ऑफ सिटी में है, बिल्कुल दिल्ली के हार्ट में। हम वहां पे गए तो उन्होंने जितने भी कस्टमर्स आ रहे थे सबको गार्लैंड, फूल माला पहनाई, बड़ा अच्छा लगा। आपको ऐसा लगा आपकी थकावट उतर गई है, फिर आपको उन्होंने माथे पे ना तिलक, और फिर आपको ना दे फ्यू सम फ्लावर्स ऑन यू। जब आपको इस टाइप से वेलकम किया गया ना, आपका मूड है ना रिजुविनेट हो गया, आपने कहा नो आई हैव टू ईट सम। तो ये तरीका है अपने कस्टमर्स को कन्विंस करें। पेन पॉइंट्स, अब कस्टमर आया आके बैठा, हमने अब क्या खाएंगे, दैट्स अ डिफरेंट वे ऑफ ट्रीटिंग द कस्टमर, दैट्स अनदर वे। तो अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, प्रेफरेंसेस, क्या प्रेफर करता है, वो यही प्रेफर करता है ही शुड बी ट्रीटेड लाइक अ किंग, ही शुड बी ट्रीटेड लाइक अ किंग। मैंने कई जगह पे ऐसे ऑटोज देखे, दिल्ली में देखे हैं, मैंने मुंबई में भी देखे हैं, जहां पर जो कस्टमर्स आते हैं उनको पानी ऑफर किया जाता है, और वाईफाई है उनके ऑटोज के अंदर, ऑटोज में टीवीज लगे हुए हैं, एंटरटेनमेंट है, और जो सीट्स हैं दे कुशन, और जहां पे आपने पैर रखने हैं वहां पे कारपेट्स लगा रखे हैं। तो ये प्रेफरेंस पेन पॉइंट्स हैं जो कस्टमर चाहता है, जिसको आप ओवरलुक ना। और बाकी आपका एनवायरमेंटल स्कैनिंग है, नेटवर्किंग है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन है, इन पॉइंट्स पर आप काम कर सकते हैं। तो इलेबोरेट द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सेंसिंग अपॉर्चुनिटीज। एग्जामिन द सोर्सेज फ्रॉम वेयर बिजनेस आइडिया इमर्जेस। कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहां से बिजनेस आइडिया इमर्ज होता है। बिजनेस आइडियाज कैन इमर्ज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग पर्सनल एक्सपीरियंस, इन पर भी हम बात कर चुके हैं। मार्केट रिसर्च, हम इस पर बात कर चुके हैं। कंज्यूमर फीडबैक, इस पर बात कर चुके हैं। ऑब्जर्वेशन इज अ न्यू वन। ट्रेंड्स एंड इंडस्ट्री इंसाइट्स पर बात कर चुके हैं। कोलैबोरेशन पे कर चुके हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, नेटवर्किंग पर कर चुके हैं। तो ये 2 पॉइंट्स है, इस पर हम और बात करते हैं। देखिए, ऐसा है कि जब भी हम बिजनेस आइडियाज की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है कि व्हेन यू pay attention to everyday situations and identifying problems that need solve। आप एक रोड के कॉर्नर पे खड़े हो जाइए, आपको मैं सच बताता हूँ दिन के एंड तक 8 से 10 ऑन्टरप्रेन्योरियल आइडियाज मिल जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा था, आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उनका बहुत बड़ा ऑफिस है। तो मैंने कहा मैं तेरे ऑफिस में ना काम स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब बड़े ध्यान से आप सुनिएगा इस काम, मैं ऑब्जर्वेशन की बेस पे कह रहा हूँ। कहता है क्या, मैं कहा तू मुझे एक छोटा सा कॉर्नर दे दे, मैं वहां पे 2 लड़के बिठा दूंगा, और उनका काम क्या होगा कि every employee in a day can get his or her shoe polished, every employee in a day once। तो कहते हैं उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि एम्प्लॉय को ना एक फील गुड फैक्टर आएगा। वहां पे मशीन लगी हुई है, यू आर वेयरिंग ब्राउन शूज सर, यू पुट योर फीट ओवर देयर, और मशीन ऑन कर दी, उन्हें शू पॉलिश हो गया। अब क्या, जब एम्प्लॉय बार बार आएगा ना तो एक ना फील गुड फैक्टर आएगा एम्प्लॉय।
और टाइम वेस्टेज भी नहीं है। जब आपके पास 5 मिनट फ्री हो, अपने जूते पॉलिश करा ले, तब एक है ना एनवायरमेंट रहेगा, फिर एवरीवन इज लुकिंग प्रोफेशनल। उस आइडिया क्लिक कर गया, तो उसने मुझे कहा कि यार हाउ कैन आई स्टार्ट। अब ये क्या है कि ऑब्जर्वेशन, मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है, मुझे जिंदगी भर इस चीज के लिए अवार्ड मिलता रहा है कि वेन एवर आई गो एनीवेयर, मैं आज भी कई सेशंस लेता हूँ, ऑनलाइन लेता हूँ, ऑफलाइन लेता हूँ, बट आई टेक अटमोस्ट केयर ऑफ माई अटायर। तो मेरे जूते में चाहे 15 मिनट 20 मिनट लगाऊं, पर उसे पॉलिश जरूर करता हूँ, चाहे कहीं भी जा रहा हूँ। हाँ, अगर मैं नॉन लेदर शूज पहन रहा हूँ वो बात अलग है, बट इफ आई एम वेयरिंग लेदर शूज आई एम गोइंग टू पॉलिश देम। सो पेइंग अटेंशन टू एवरीडे सिचुएशंस, मैं देखता हूँ, ऑफिसेज में जाता हूँ, पीपल आर इन द मूड ऑफ नॉट पॉलिशिंग देयर शूज। अच्छा जी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बेस पे कंपनी बिजनेस एस्टैब्लिश हो सकते हैं और खराब भी खत्म भी हो सकते हैं। अब देखिए क्या है, अब आपने एमबीए किया इन 2001, ठीक है, बहुत अच्छी बात, पर 2023 तक उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए, तो अब आपकी नॉलेज को रिफ्रेश भी करना पड़ेगा, उसके लिए एजुकेशन रिक्वायर्ड है, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है। Insights gained from formal education, workshops and training programs is very important in order to generate business ideas. तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट, क्या आपका ऑब्जर्वेशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और उसके अलावा पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मार्केट रिसर्च है, कंज्यूमर्स फीडबैक है, ट्रेंड्स एंड इंडस्ट्री इंसाइट्स हैं, कोलैबोरेशन, लोगों के साथ मिलकर काम कर। एक एंटरप्रेन्योर को ईगो शोभा ही नहीं देती। जहां आपने बिजनेस में ईगो ले आए ना, तो आप ये देख लीजिए, आपका क्लाइंट भी गया, आपका बिजनेस भी गया, और मैं कह रहा हूं आप 1 मिनट के लिए डील ना करें क्लाइंट के साथ, ईगोइस्टिक ना, दैट्स वेरी। अच्छा, डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ आइडियाज। इन्वेस्टिगेशन, investigating business ideas is crucial to determine their feasibility and potential. The steps involved in this process may include idea clarification, market research, feasibility analysis, prototype development, testing and validation, business planning, resource assessment, risk analysis, legal and regulatory compliances, iterative refine. अब देखिए, इन पॉइंट्स को हम ले लेते हैं, जो हमने करे हैं उनको हम अवॉइड कर देंगे, जो हम नए पॉइंट्स उनको हम जरूर लेंगे। आइडिया क्लैरिफिकेशन, clearly define the idea, its purpose and problem it intends to solve. भैया बिजनेस इसलिए स्टार्ट नहीं करना कि 50 लोग कर रहे हैं, बिजनेस इसलिए स्टार्ट करना है कि आपकी क्षमताओं के हिसाब से आपका स्टार्ट किया हुआ बिजनेस लोगों की प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करता है। बिजनेस क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, और लोग क्या है, उनके पास समस्याएं हैं, तो लोग जैसे ही आपके पास आते हैं उनकी उन समस्याओं का निवारण हो जाता है। आइडिया क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते आई एम अ बिजनेसमैन बिकॉज आई एम डूइंग बिजनेस, नो, इफ योर बिजनेस इज नॉट रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम, इट इज नॉट अ बिजनेस। मार्केट रिसर्च, फिजिबिलिटी एनालिसिस, फिर एक बार देख लीजिए फिजिबिलिटी एनालिसिस को, मैं टिक करता रहूंगा जो पॉइंट्स मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। फिजिबिलिटी एनालिसिस, पॉसिबिलिटी, assess the technical, financial, operational feasibility of turning an idea into viable business। अब है ना, बड़े बड़े आइडिया सोचने आसान है भैया, पर इसकी फिजिबिलिटी बहुत मुश्किल है। हम ये सोच तो लेते हैं प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेंगे, पर प्रोडक्शन स्टार्ट करने में ना आपको पता नहीं कि कितने एफर्ट्स लगते हैं, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है, इन सब चीजों को मिला के आगे प्रोडक्शन स्टार्ट होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेंचर स्टार्ट कीजिए और उसकी फिजिबिलिटी भी चेक कर लीजिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, आप एक प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बना सकते हैं, टेस्टिंग, वैलिडेशन, बिजनेस प्लानिंग, रिसोर्स असेसमेंट, रिस्क एनालिसिस। मार्केट स्कैन करेंगे, आप रिस्क को रिड्यूस करेंगे, रिसर्च करेंगे, आप रिस्क को रिड्यूस करेंगे, आप पढ़ेंगे, रिस्क को रिड्यूस करेंगे, आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करेंगे, आप रिस्क को रिड्यूस करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, आप रिस्क को रिड्यूस करें। जितनी समाज में पढ़ाई ज्यादा होगी ना, लोग पढ़ेंगे ज्यादा, लिखेंगे ज्यादा, उतना ही इनोवेशन होगा। आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड मिटिगेटिंग स्ट्रेटजीज।
मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, रिस्क को एनालाइज कीजिए और स्ट्रेटजीज बनाइए उन्हें रिड्यूस करने के। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, यू नो, इटरेटिव रिफाइनमेंट, दोबारा दोबारा आपको स्ट्रेटजीज बनानी है, उन्हें रिफाइन करना है, फिर दोबारा बनानी है, फिर रिफाइन करना है, वन डे गेट अ फाइन स्ट्रेटजी। और उसके बाद बियॉन्ड इट, मैं कुछ दिन पहले बोस एकॉस्टिक्स के संस्थापक अमर गोपाल बोस जी का इंटरव्यू सुन रहा था। तो उसमें अमर गोपाल बोस जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं बोस में ना, वी थिंक बियॉन्ड द नॉर्मल, जो एग्जिस्टिंग है वो तो है ही, हम उसके बियॉन्ड सोचते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स बोस। तो इटरेटिव रिफाइनमेंट वही है, एक स्ट्रेटजी बनाई, उसमें जो शॉर्टकमिंग्स थी उसे चेंज किया, फिर उससे बेटर स्ट्रेटजी बनाई, फिर नेक्स्ट टाइम उससे बेटर बनाई। और यही बिजनेस है। बिजनेस में आप ये नहीं कह सकते यू हैव ओपनड अ बिजनेस स्टार्ट्स रनिंग ऑन इट्स ओन, नो 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 नो, इट नेवर हैपेंस। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, what do you understand by trend spotting? What are the ways by which entrepreneurs can spot trends? दौर, इस पर हम बात कर चुके हैं। Trend spotting refers to the ability to identify emerging patterns, shifts and changes in consumer behavior, technology or the market. Entrepreneurs can spot trends through various methods. उसमें बचो है मार्केट रिसर्च है, इसे हम कर चुके हैं। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग है, इसको हम कर चुके हैं। नेटवर्किंग है, इस पर हम काम कर चुके हैं। कंज्यूमर इनसाइट्स है, इसको हम देख लेते, वो भी हम कर चुके हैं। टेक्नोलॉजिकल स्कैनिंग भी हम कर चुके हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग भी हम कर चुके हैं, एंड कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस भी हम कर चुके हैं। तो अगर आप इन सब चीजों पे काम करोगे तो यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड स्पॉट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन इन डिटेल द आइडिया फील्ड्स। ओके, गिव मी अ सेकंड। आइडिया फील्ड्स अब क्या है? ऐसी फील्ड जहां पर आइडिया जनरेट की जाती है। आइडिया फील्ड्स आर स्पेसिफिक डोमेन्स और एरियाज इन विच एंटरप्रेन्योर्स फोकस देयर क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट्स। बच्चों में से कोट्स में कर रहा हूं, अगर आप इतना भी लिखेंगे ना और इसे एक्सप्लेन कर देंगे, यू विल गेट गुड मार्क्स। Idea fields are specific domains or areas in which entrepreneurs focus their creative thinking and problem solving efforts. These fields can be broad or narrow, and they represent the industries or the sectors where entrepreneurs seek opportunities. ये fields छोटी हो सकती हैं, ये fields बड़ी हो सकती हैं, बट यहाँ पर opportunities होती है। याद रखिएगा, दुनिया के हर बिजनेस में कामयाबी है, आपको बिजनेस करना आना चाहिए। बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता, बिजनेस को करने का तरीका हो, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, यू नो, क्रिएटिव थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट्स। अब बच्चों आप ऑब्जर्व कीजिए हमारी कंपनी क्या कर रही है, हम लोग आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं, बहुत रेयरली लोग करते हैं। क्यों? बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट। में हमारे क्या एफर्ट्स हैं अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और मेरी बात आप याद रखिएगा, जिंदगी में हमेशा अगर आप एफर्ट्स डालते हैं ना, आपको उनको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद नजर आते हैं एफर्ट्स। अच्छा, सेकंड पॉइंट, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ऑफ आइडिया फील्ड्स इंक्लूड टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सस्टेनेबिलिटी, एंटरटेनमेंट एंड मोर। एंटरप्रेन्योर चूज आइडिया फील्ड्स बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के बेस पे आइडिया फील्ड चूज कर लेते हैं। एक्सपर्टीज, market research and the potential for innovation and growth within that domain. Idea fields provide a framework for narrowing down business ideas and concentrating efforts on specific market segments or industries where they believe they can make significant impact. और जब उन्हें लगता है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हम काम करके अच्छा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हम छोड़ के जा सकते हैं, उसको वो चूज कर लेते हैं। बड़ी अच्छी बात बताते हैं, स्टोरी सुनो आप, बड़ी अच्छी स्टोरी है। एक आदमी था, वो अपनी आईएएस की तैयारी कर रहा था। बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है, आईएएस की तैयारी कर रहा था और उसका रिटर्न क्लियर हो गया, इंटरव्यू उसका क्लियर नहीं हुआ। उसने कहा मैं दोबारा दूं, उसने दोबारा तैयारी की, दोबारा उसने रिटर्न निकाल दिया, इंटरव्यू उसका क्लियर नहीं हुआ। और अब है ना, उसे दोबारा पेपर नहीं दिया। उसने कहा मेरे जैसे हजारों छात्र होंगे, बच्चे होंगे जो रिटर्न क्लियर कर लेते होंगे और इंटरव्यू क्लियर नहीं करते होंगे। उसने उसके बेस पर एक इंस्टीट्यूशन खोला जहां पर आईएएस का इंटरव्यू क्लियर करने की तैयारी कराई जाती। और बच्चों इंस्टीट्यूशन स्टार्ट हुआ
and today that person is having more than 50 institutions across the country. तो क्या है, वो एक significant impact छोड़ सकता था उन बच्चों के लिए, those who have lost hope in getting failed in the interviews of IAS. Are you getting it? So entrepreneurs choose idea fields based on their interest, expertise, and market research, and the potential for innovation and growth within that domain. Idea fields provide a framework for narrowing down business ideas and concentrating efforts on specific market segments or industries where they believe they can make a significant impact. अब ये आपने इसके आंसर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे हॉट्स के, ये आपके बुक के पीछे क्वेश्चंस दे रखे। हमारा क्या मोटिव है कि जब आप मेरी क्लासेस में आए, यू आर गोइंग टू रिजॉल्व ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स। अब मैं बात कर रहा हूं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स की। अब एक क्वेश्चन है, ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 4। अब क्वेश्चन क्या है, Aditi started her boutique business near an industrial area and she was not getting clientele as she had expected. What are the factors which have been ignored before starting the boutique? Suggest various factors that she has to look into before venturing into business. Achha. Just let me check. Okay. These are 4 questions. Second question is, Mr. Raghav had always wanted to manufacture an innovative, energy efficient fan. He was looking into various options and has finally narrowed it down to one option. He understands that the entire idea would have to follow a process. Identify and explain the process. Okay. Third question. These are convenient frames of references for streamlining the process of generation of ideas. Identify them and explain any 3 briefly. Fourth question. Varun decided to start his own venture and was looking into various ideas. Explain to him various sources from where he can get some good business idea. तो हम एक एक करके क्वेश्चंस को लेंगे, पहले अदिति वाला, फिर राघव वाला, फिर थर्ड क्वेश्चन है, फिर वरुण वाला। पहले अदिति वाला ले लेते। Aditi's lack of clients near the industrial area may be due to several factors she might have overlooked before starting a boutique business. Some factors to consider before venturing into business include कौन-कौन सी चीजें उन्होंने इग्नोर करी और इंक्लूड की जानी चाहिए थी। मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन, टारगेट ऑडियंस, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, मार्केटिंग एंड प्रमोशन, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कस्टमर एंगेजमेंट। अब इन पॉइंट को एक एक करके देख लेते। आपने बुटीक खोला और आपने इंडस्ट्रियल एरिया में बुटीक खोल दिया, वहां तो प्रोडक्शन का काम ज्यादा होता होगा, तो वहां पे कपड़े कौन सिलवाए। Aditi should have conducted thorough market research to understand the local market's demands for boutique clothing, particularly in an industrial area. Location, the choice of location is critical. ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप ऐसी जगह काम मत स्टार्ट कर लीजिएगा जहां काम चलना नामुमकिन हो। तो आपने हर बार टायर इन्वेंट नहीं करना है कुछ करने से पहले। लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। If the industrial area primarily consists of blue collar workers who may not require boutique clothing, she should consider her location. तो अगर आपने इंडस्ट्रियल एरिया में खोल लिया जहां पे ब्लू कॉलर लोग हैं और जिन्हें ऐसे कपड़ों की जरूरत नहीं, तो आपको लोकेशन की एक बार देखना पड़ेगा। टारगेट ऑडियंस, identifying a target audience and tailoring our offerings to their preferences is essential. Competitive analysis, analyzing the competition in the area and differentiating a boutique from existing alternative. Marketing and promotion, developing a marketing strategy to reach potential customers and create awareness about her boutique. बहुत important. Creating awareness about your boutique is very important. Pricing strategy, ensuring her pricing aligns with the budget and expectations of a target market. Prices initially has to be less. Inventory management, managing inventory effectively to meet customers' demands without overstocking. Inventory भी आपने उतनी रखनी है कि आपने overstock नहीं करना है, तो बाद में माल बिकेगा कैसे आप। Customer engagement, building relationship with industrial workers and understanding their clothing needs and preferences. अगर industrial workers है तो आप कम पैसे में भी अच्छा कपड़ा सिलकर दे सकते। Okay, next question. Mr. Raghav, innovative fan manufacturing process.
The process of manufacturing an innovative energy efficient fan involves several stages: idea generation, concept development, prototyping, testing and iteration, manufacturing process design, quality control, marketing and launch, scaling and production, and continuous improvement. हम इन पॉइंट्स कर चुके हैं, पर फिर भी इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू व्हाट राघव इज रिक्वायर्ड और राघव इज रिक्वायर्ड. और याद रखिएगा, राघव एक एनर्जी एफिशिएंट फैन बनाना चाहते हैं और आज की डेट में बहुत सारे अवेलेबल है. आज आप अगर मार्केट में सर्च करेंगे तो बच्चों 25 वॉट का ही फैन है जो आपके 70 to 80 वॉट के फैन से 3 गुनी स्पीड देता है. तो पीपल आर वर्किंग ऑन दिस. अब राघव ने पहले आइडिया जनरेशन करना है. राघव begins by brainstorming and researching ideas for the innovative fan. This phase involves creativity and exploring various concepts. Concept development. After narrowing down the options, Raghav develops detailed concept for the fans, considering design, energy efficiency and potential materials. तो एक बार concept develop कर लेना आपने, फिर prototype बनाना है. Raghav creates a prototype of the fan to test its functionality and design. This step allows him to refine the concept. आइडिया जनरेशन हुआ, कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट एंड प्रोटोटाइपिंग. तो ये हो गया आईसीपी. मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप इन पॉइंट्स को याद रख सकते हैं. टेस्टिंग एंड इटरेशन. आप जो भी आपने प्रोटोटाइप बनाया उसे आप टेस्ट करें और जो भी शॉर्टकमिंग्स है उन्हें चेक करके इंप्रूव करते हैं. फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिजाइन, क्वालिटी कंट्रोल का ध्यान रखना है, मार्केटिंग एंड लॉन्च का ध्यान रखना है, स्केलिंग एंड प्रोडक्शन का ध्यान रखना है. जितनी डिमांड है उस हिसाब से प्रोडक्शन करनी है, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहना. वो इटरेटिव प्रोसेस आपका है. जिस समय अब जो दीज, ये जो थर्ड क्वेश्चन को मैं दिखा दूं आपको. These are convenient frames of references for streamlining the process of generation of ideas. Identify them, explain any three briefly. तो बच्चों कौन से convenient frames हैं जिनसे आप streamline कर सकते हैं the process of generating ideas. So let's have a look towards. तो बच्चों ये तीन processes कौन कौन से हैं? These frames of reference are tools or approaches that help streamline the process of generating ideas. Three common ones are brainstorming. एक ही आइडिया पर आप 50 से ज्यादा ऑप्शंस ले सकते हैं, 25 से ज्यादा ऑप्शंस ले सकते हैं. This involves free flowing idea generation in a group setting, encouraging creativity and a wide range of suggestions. SWOT analysis, strengths, weaknesses, opportunities and threats. जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उसके बेसिस पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और जो आपके थ्रेट्स हैं उसके बेसिस पर आपको वीकनेसेस है उसके बेसिस पर आपको थ्रेट्स मिलेंगी. तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर इंटरनल, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर एक्सटर्नल. Scamper, an acronym for substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, and reverse. Scamper is a technique to stimulate creative thinking and generate new ideas by altering existing ones. तो एक टर्म है scamper जिसमें S stands for substitute. कोई substitute है उसे आप combine कीजिए, according to environment आप adapt कर लीजिए, जिस तरह का प्रोडक्ट आपने बनाना है उसे फिर modify करिए, put to another use, उसे use में लेके आइए, eliminate and reverse. And scamper is a technique to stimulate creative thinking and generate new ideas by altering existing. Okay, so these three points are there: SWOT analysis, brainstorming, SWOT analysis, and scamper. Now let's take up the fourth question. Varun decided to start his own venture and was looking into various ideas. Explain to him various sources from where he can get some good business ideas. And here they are. Sources of business ideas for Varun. They can come from personal experience, this we have taken. Market research, this we have already taken. Networking, taken. Consumer feedback, technology and innovation, competitors analysis, problem solving, and trends. We have taken all these pointers earlier. So sources of business ideas for anybody is person experience, market research, networking,
consumer feedback, technology and innovation, competitor analysis, problem solving, and trends. And these are application-based questions. I believe this is the last part of today's class. And here is one question, which is application-based. Vinay was a young entrepreneur who wanted to start a new business with an initial investment of 25 lakhs. He was not sure of what business he has to undertake. His friend suggested seeking the help of professionals who would spot the latest trends in the market and give him an idea. But Vinay decided to do it by himself, suggest the various ways by which he can do. Again, Vinay has to undergo market research. We have already taken. Industry publications, we have already taken. Online resources, this is a new one. Networking, we've already taken, and customer feedback, we've already taken. So Vinay's decision to spot trends in the market by himself is commendable. And there are several ways he can go about it. He can start with market research. He can read industry publications, online resources. Vinay can leverage the internet to assess the wealth of information. But your internet is equivalent to wealth of information. Online platforms, blogs, forums, and social media are great sources of staying updated on current trends and consumer discussions. Networking is very important. Building a strong network within the business and entrepreneurial community can provide valuable insights. Vinay can attend industry conferences, join professional associations, and participate in networking events to connect with customers, experts, and peers. Customer feedback is very important. Listen to customers' feedback and reviews, either online or through surveys, and focus groups can reveal changing consumer preferences and trends. Competitors analysis, this we have already taken. Technology scanning, we have done. Mentorship is a new one. Trend analysis tools we have taken. Environmental scanning we have taken. So mentorship, seeking advice and mentorship from experienced entrepreneurs or industry veterans can provide valuable guidance and market trends and business opportunities. तो बच्चों ये इसी तरीके से जैसे आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हैं, सीकिंग एडवाइस एंड मेंटरशिप फ्रॉम एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्री वेटरन्स कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल गाइडेंस ऑन मार्केट्स, ट्रेंड एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. आपको अपने आप को ही एक्सपर्ट नहीं समझना चाहिए. जब आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, उनसे आप गाइडलाइंस लेंगे, तो आपको पता चलेगा वेयर योर शॉर्टकमिंग्स आर, वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक्स एंड वेयर यू शुड नॉट मेक मिस्टेक्स. So by combining these methods and staying diligent in his research, Vinay can identify promising trends and opportunities that align with his interest and investment capacity, ultimately helping him make an informed decision about his new business venture. So let's sum up. In today's class, we have taken these 7 form of questions from Unit 1. Very short answer, long answers, very long answers, HOTS, which is higher order thinking skills, and application-based questions. So, bacho, with this, we have come to the end of today's class. Thank you very much for staying with me. We'll keep generating these form of classes for you all, though they are longer, but they are very informative. So follow and subscribe via these links. मैंने 2 links दे रखे हैं, इससे आप हमारे और channels को भी subscribe कर सकते हैं. These are these 2 channels. It's a presentation by Team Mavericks India Solution. With Mavericks India, you'll always gain. So until we meet next time, bye-bye for now. God bless you all. Keep studying, keep exploring, and keep becoming good entrepreneurs. So see you all the next class. Till then, bye-bye for now. Take care.